اکثر خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دلوں میں پسندیدگی کا جذبہ نہ ڈالتا تو شاید کسی کی زندگی میں کبھی اچانک انقلاب نہ آتا۔ مرتے ہوئے لوگ اچانک جینا اٹھتے، وہ بھی ایک ایسے لمحے کی گھٹن میں مبتلا تھی کہ کسی کی ایک نظر نے کمال کر دیا۔ برسوں کی اجنبیت پل کے پل میں جب چاہت میں ڈھلی تو محبوب کے رفاقت کے حصول کے لیے اس اجنبی محسن نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ یہ اور بات ہے کہ اس بازی میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، لیکن ایک نظر کی محبت پر اس نے اپنے نام کی مہر ثبت کر دی۔ گاؤں کے عیاش وڈیروں کے نرغے میں پھنسی ایک معصوم فطرت دوشیزہ کی بے بسی نے جب اثر دکھایا تو نہ چاہنے کے باوجود اس دلدل سے نکلنے کے لیے اس نے گناہوں سے بھی وہ جرم سرزد ہو گیا جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر اس کے سوا رستہ بھی کوئی نہ تھا۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار رات تھی۔ پورا چاند آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا اور بادلوں کے ساتھ اس کی آنکھ مچولی بھی جاری تھی۔ جب بادل کا کوئی ٹکڑا چاند کے مکھڑے کو ڈھانپ لیتا تو فضا اس کی روشنی سے محروم ہو جاتی، لیکن جلد ہی وہ پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ نمودار ہو کر ماحول میں اجالا بھر دیتا اور کرب و جوار کی ہر شے کو منور کر دیتا۔ اسی رگوں میں لہو کو منجمد کر دینے والی یک بستہ رات میں حوالدار نبی بخش کے ساتھ نہر اپر چناب کے کنارے پر موجود تھا۔ ان دنوں میں ضلع گوجرانوالہ کے تھانے صدر تعینات تھا۔ میرا تھانہ GT روڈ پر شیخو پورہ موٹر کے نزدیک واقع تھا۔ مجھے میرے مخبر نے اطلاع دی تھی کہ آج نصف شب شوگا ڈنگر چور مویشیوں کی کثیر تعداد کے ساتھ میرے علاقے میں داخل ہونے والا ہے۔ میں نے مویشی چور شوکت عرف شوکا کا نام سن رکھا تھا، تاہم ابھی تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ اغلب الامکان یہی تھا کہ آج کی رات مجھے شوکا سے دو ہاتھ کرنے کا موقع ملنے والا ہے۔ ان دنوں ضلع گوجرانوالہ میں مویشیوں کی منڈی لگی ہوتی تھی اور شوکا چوری کے جانوروں کو رات کی تاریکی میں مذکورہ منڈی تک پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی کوشش کو ناکام بنانا تھا۔ اسی مقصد کی حصول کی خاطر میں اور حوالدار نبی بخش وجود کو اکڑا دینے والی سردی کو برداشت کر رہے تھے۔ نہر اپر چناب دریائے چناب سے نکلنے والی ایک بڑی نہر ہے اور یہ گوجرانوالہ کے مضافات میں زرعی اراضی کے اندر سے گزرتی ہے۔ نہر مذکورہ میں پانی کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت ہے۔ ہم نے اس نہر کے کنارے جھاڑیوں کی جھڑ میں پناہ لے رکھی تھی اور ہماری نظریں نہر کے اس حصے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے شوکا نے چوری کے جانوروں کو نہر پار کرانا تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ان دنوں موسم سرما جوبن پر تھا۔ دسمبر کا مہینہ اپنا نصف سفر طے کر چکا تھا۔ نہر کے اندر پانی کی مقدار بہت کم تھی۔ مئی سے اگست تک اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ یہ نہر لبالب بھر کر چلتی دکھائی دیتی ہے اور پانی کی رفتار بھی 8 سے 10 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ تاہم اس وقت نہر کے وسط میں پانی کا ایک چھوٹا سا نالا سست روی سے رواں دواں تھا۔ یہی سبب تھا کہ شوکا نے یہاں سے نہر عبور کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ بھری بھری نہر میں ایسا سوچنا بھی حماقت ہوتی۔ ملک صاحب، مجھے تو لگتا ہے ریاست کی اطلاع درست نہیں۔ حوالدار نبی بخش نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رگڑتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا۔ ریاست علی اس مخبر کا نام تھا جس نے مجھے شوکا کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اپنی نگاہ کو نہر پر جمائے رکھا اور حوالدار سے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے جناب؟ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ کیا ہم صبح تک اس منحوس شوکا کے انتظار میں ادھر ہی بیٹھے سردی میں ٹھٹھرتے رہیں گے؟ آدھی رات کا گزر جانا یا شوکا کا منحوس ہونا یا ہمارا سردی میں ٹھٹھرنا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ریاست علی کی اطلاع درست نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا، لیکن میرے خیال میں اب تک اسے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے، میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ رات واقعی آدھی سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اس وقت 12:30 بج رہے ہیں اور آج کل تو سورج بھی لگ بھگ 5 بجے غروب ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے تو رات ہوئے 7 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ شوکا نے ہمارے نہیں اپنے پروگرام کے مطابق آنا ہے، لہٰذا ہمارے پیشے کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم از کم اذان فجر تک شوکا کی راہ دیکھی جائے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آج تک ریاست نے مجھے کبھی غلط اطلاع نہیں دی، وہ میرے بھروسے کا بندہ ہے۔ میں ریاست کی قابلیت پر شک نہیں کر رہا ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شوکا نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا ہو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔
नबी बख्श ने वाज़ेह तौर पर अपना बयान बदला था। मुझे उसने बड़े मजबूत अंदाज में कहा था कि रियासत की इतला दुरुस्त नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि मैं रियासत पर अपने एतमाद का इजहार कर रहा हूँ तो उसने भी अपने ख्याल की पटरी बदल ली थी। हम इस वक्त खेतों के बीच खुले माहौल में झाड़ियों की झुंड में बैठे हुए थे और मौसम की यकबस्तगी ने हवलदार की मत मार दी थी। ऐसा नहीं है कि मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, सर्दी का तो काम ही लगना है, ये सबको लगती है, बस अपनी अपनी बर्दाश्त की बात है। वो क्या है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। कहाँ? किधर? क्या? नबी बख्श अलर्ट लहजे में बोला। मैंने नहर के मशरक़ी सिमत इशारा करते हुए कहा, वो देखो, नहर के अंदर कुछ तैरता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। चांदनी रात की वजह से काफ़ी दूर तक देखना आसान हो गया था। नहर के पानी का बहाव मशरिक़ से मगरिब की सिमत था और वो चीज़ उधर मशरिक़ की जानिब से बहती हुई हमारी तरफ आ रही थी। मुझे तो एक कपड़ों की कोई गठरी लग रही है, नबी बख्श ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। अगर एक कपड़ों की गठरी नहीं तो फिर कोई इंसान है, मैंने गमगीन अंदाज में कहा, लिबास समेत। मगर आधी रात को कौन तैराकी करेगा मलिक साहब? उसने बेहद उलझे हुए लहजे में कहा, और वो भी इस कदर ठंडी रात में। नबी बख्श, मुझे लगता है सर्दी ने तुम्हारे हवास को जमा दिया है, मैंने लहर में तैरते हुए टारगेट को अपनी निगाह में रखते हुए कहा, वरना तुम ऐसी अहमाना बात कभी ना करते। मैंने क्या किया है जी? वो हैरत भरे अंदाज में बोला। तैराकी करते वक्त इंसान अपने लिबास में नहीं होता, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो अपने कपड़ों को बदन से जुदा करके तैराकी का मखसूस जांगिया या नेकर पहन लेता है, जबकि हमारी आंखें इसके बरक्स नज़ारा कर रही हैं। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर नज़र आ रहा है। मैंने आखिरी जुमला अपने सनसनीखेज अंदाज में अदा किया था कि वो बेसाख्ता पूछ बैठा, कैसा चक्कर मलिक साहब? ये किसी इंसान की लाज भी तो हो सकती है, मैंने इंकशाफ अंगेज अंदाज में कहा। ओह! नबी बख्श ने तशवीश भरी सांस खारिज की। तैयारी पकड़ लो नबी बख्श, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा कि जो कुछ भी है लगभग 10 मिनट में हमारे सामने से गुजरेगा और हमने इसे नहर से बाहर निकालना है। इस काम के लिए तो हमें नहर में उतरना पड़ेगा। वो हिचकिचाहट भरे अंदाज में बोला। बिल्कुल, मैंने कतई लहजे में कहा, और इस महम जोई में बड़ी हद तक हमारे लिबास भी भीग जाएंगे और हमें सख्त सर्दी भी लगेगी, लेकिन क्या करें, ये कार्य सरकार है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बात ख़त्म करते ही मैंने अपने बूट उतार दिए और पतलून के पाँचों को उड़सने में मसरूफ़ हो गया। अपने सीनियर को इस काम में मसरूफ़ देखकर नबी बख्श के पास कोई जाए फरार ना रही, चुनांचे वो भी मेरा साथ देने की तैयारी करने लगा। जिन दिनों अपर चनाब नहर अपने किनारों तक भरकर बह रही होती है, उस वक्त इसके कलब की गहराई कमोपेश 20 फीट होती है। मैंने तो औसत गहराई बताई है, वरना बाज़ मकामात पर ख़ुसूसन किसी पुल के बाद इसके कल्ब में पानी की गहराई 25 से 30 फीट तक भी चली जाती है। लेकिन इन दिनों पानी का जोर टूटा हुआ था। नहर के वस्त में पानी का जो नाला सब बह रहा था, मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी गहराई 5-6 फीट से ज़्यादा नहीं थी। हम आसानी से अपने टारगेट को खींचकर पानी से बाहर ला सकते थे। मैंने जल्दी अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली और ये देखकर मेरे तमाम अंदाज़ों की तस्दीक हो गई कि गठरी की सूरत दिखाई देने वाली वो चीज़ एक इंसान था, एक मर्द, जो मेरे फौरी ख्याल के तहत दायरे फ़ानी से कोच कर गया था। मैंने नबी बख्श की मदद से उसकी लाश को खींचकर अपनी कमेनगाह वाली झाड़ियों के नज़दीक डाल दिया। मलिक साहब, ये बदनसीब कौन हो सकता है? नबी बख्श ने तशवीशनाक अंदाज में कहा। मुझे तो लगता है ये मर चुका है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। इसकी शनाख्त का मामला तो सुबह होने के बाद ही हल किया जा सकता है। जब तक मैं इसका तफसीली मुआयना ना कर लूँ, हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता, और ये काम दिन की रोशनी में ही किया जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, नबी बख्श ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। निफ से ज़्यादा लिबास भीग जाने के सबब नबी बख्श की बाकोल कैसे कुल्फ़ी जम चुकी थी। इन लम्हात में वो शदीद सर्दी की लिपट में था। हालत मेरी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ताहम मैं हालात और मौसम की सख्ती को झेलने की कोशिश कर रहा था। हमें ज़्यादा देर तक इस कैफियत में नहीं रहना पड़ा। जिस मकसद के हसूल की खातिर हमने झाड़ियों के इस झुंड में पड़ाव डाला हुआ था, इस मकसद पर पूरा होने के आसार नमूदार हो गए। चांदनी रात ने मुझे और नबी बख्श को बड़े वाज़ेह अंदाज में दिखाया कि लगभग 4 दर्जन मवेशी नहर के किनारे से अंदर उतर रहे थे। मेरे रगोपे में सनसनी से दौड़ गई। कुछ ऐसा ही हाल नबी बख्श का भी था। शौका डंगर चोल माले मसरूका समेत हमारी निगाह में आ गया था। रियासत की इतला हकीकत का रूप धार चुकी थी। मौसम की शिद्दत का एहसास हमसे कोसों दूर जा चुका था। ऐसे में सर्दी लगने का क्या सवाल। हम पूरे जोशो खरोश के साथ शौका को छापने के लिए आगे बढ़ने लगे, जो हमसे चंद कदमों की दूरी पर चोरी शुदा मवेशियों के साथ नहर के अंदर उतर चुका था। मैंने तजुर्बेकार निगाह का इस्तेमाल करके अंदाज़ा लगा लिया था कि इस बदबख्त को पलक झपकते में मौत के घाट उतार दिया गया था। कातिल जो कोई भी था, वो पहलवानी, कबड्डी या किसी और शेज़ोरी के शोबे से ताल्लुक़ रखता था, क्योंकि मकतूल की गर्दन का मनका तोड़कर जिस तरह उसे ज़िंदगी
की कैद से आज़ाद किया गया था। इस नौयत का तकनीकी काम किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। ये किसी दाव पेच के माहिर कारीगर का कारनामा था, जिसने मकतूल की गर्दन को तूफानी झटका देकर इस जहां से उस जहां में पहुंचा दिया था। मुझे इस माहिर फन कातिल का सुराग लगाना था और इससे कबल मकतूल की शनाख्त ज़रूरी थी। कारीन, ये कहानी शोका डंगर चोर के जिक्र से शुरू हुई थी। बाद अज़ा एक नामालूम शख्स की लाश इस कहानी के अंदर दाखिल हो गई। हालात का तकाजा यह है कि फौरी तवज्जो के तालिब मामले को पहले बयान किया जाए, और ज़ाहिर है कि किसी इंसान का कत्ल किसी पेशावर चोर की गिरफ्तारी से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लिहाजा मैं शोका के जिक्र को फिर किसी वक्त के लिए महफूज रखे हुए नामालूम मकतूल की तरफ आता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपकी मालूमात के लिए इतना बता दूँ कि इस ठंडी थार रात मैंने शोका को इसके 2 साथियों इलियास और अफजल समेत गिरफ्तार कर लिया था। शोका के कब्जे से चोरी शुदा 42 मवेशी भी मेरे हत्थे चढ़े थे, जिनमें 30 भैंसें और 12 गायें शामिल थीं। मकतूल की उम्र 25 और 30 साल के दरमियान रही होगी। वो मजबूत जिस्म का मालिक एक कबूल सूरत शख्स था। उसने बड़ी रौबदार मोटी ताज़ी मूछें पाल रखी थी। इसके बदन पर गर्म लिबास था और मौसम की मुनाजमत से इसने ऊनी स्वेटर भी पहन रखा था। इसकी जामे तलाशी से मुझे कुछ ऐसी शे नहीं मिली जिसका बयान जिक्र किया जाए। मैंने अच्छी तरह टटोल कर इसके सारे वजूद का मुआयना भी कर लिया था, लेकिन उसके जिस्म पर कहीं भी ऐसा कोई ज़ख़म दरियाफ्त नहीं हुआ जिसे उसकी मौत से मंसूब किया जाता, जिसका एक ही मतलब था कि गर्दन का मनका तोड़कर चश्मे ज़दन में इस बदनसीब को सुब्रत मौत कर दिया गया था। इसके बाद इस अजल रसीदा को नहर की सुस्त रफ्तार लहरों के हवाले कर दिया गया। इस नामालूम मकतूल के लाश के दरियाफ्त का सेहरा मेरे और हवलदार नबी बख्श के सर बनता था। गुज़िश्ता शब जब हमने इस मुर्दा शख्स को नहर से निकाला तो हम दोनों के सिवा वहाँ और कोई नहीं था, लेकिन अब दर्जन भर अफराद वहाँ मौजूद थे और ये सुबह के लगभग 9 बजे का वक्त था। सूरज तुलू हो चुका था, ताहम अभी तक इसकी धूप में तमाज़त और तपिश शामिल नहीं हुई थी। फिर भी गुज़िश्ता शब की बानिस्बत इस वक्त मौसम खासा खुशगवार था। मैंने मौके पर मुख्तलिफ लोगों को मुर्दा शख्स का चेहरा दिखाकर इसकी बाबत दरियाफ्त किया। उनमें ज़्यादातर खेत के मजदूर थे जो हस्ब मामूल नहर की दोनों जानिब वाक़ई खेतों में काम करने आए थे, लेकिन वहाँ पुलिस की मौजूदगी ने उन्हें खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया था। इनमें से हर एक ने फ़र्दन इस मुर्दा शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। एक उम्र रसीदा बुढ़े बाबे ने कदर उम्मीद अफजा बात की, थानेदार साहब, मैंने इस बंदे को चौधरी की हवेली में देखा है। वो आंखें सुकेड़ कर मुर्दा शख्स की तरफ तकते हुए बोला, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि इसका नाम क्या है। मैंने चौंक कर उस बुजुर्ग की जानिब देखा और पूछा, चाचा, तुम्हें अपना नाम तो याद है ना? जी सरकार। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे अल्लाह रखा कहते हैं। चाचा, अल्लाह रखा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इस बंदे का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये बता दो कि तुमने इसे किस चौधरी की हवेली में देखा था। चौधरी सिकंदर अली की हवेली में, थानेदार साहब। वो बड़े वसूख के साथ बोला, मैंने फरीदपुर के चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। मैं चौधरी सिकंदर को जानता था, 2-3 मरतबा इससे मेरी मुलाकात भी हो चुकी थी। कुछ अरसे पहले चौधरी सिकंदर को फालिज का अटैक हुआ था, जिसने उसके जिस्म का ज़रे हिस्सा बिल्कुल नकारा कर दिया था, जिसके बाद वो बिस्तर का होकर रह गया था। चौधरी सिकंदर रिवायती चौधरी से बहुत मुख्तलिफ था। इसके अंदर मुझे गरूर, तकब्बुर और हद से मुतवाजिद खुदपसंदी बिल्कुल नज़र नहीं आई थी। उसके अलावा तुम इस बंदे के हवाले से कुछ जानते हो? मुझे बताओ। मैंने अल्लाह रखा की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, क्या इसका ताल्लुक़ फरीदपुर से ही है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला, हो सकता है ये उधर ही का रहने वाला हो या कहीं और से आया हो। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद अल्लाह रखा को फारिग कर दिया। आज सुबह इस तरफ आते हुए मैं अपने साथ कांस्टेबल बासित और सरकारी फ़ोटोग्राफ़र आफ्ताब को भी लेकर आया था। हम तीनों घोड़ों पर सवार होकर यहाँ पहुँचे थे। अगर मकतूल मुकम्मल तौर पर नामालूम रहता तो मैं सरकारी फ़ोटोग्राफ़र से मुख्तलिफ ज़ावियों की 3-4 तस्वीरें बनवाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा देता, लेकिन अल्लाह रखा ने मुझे एक और अंदाज में सोचने पर मजबूर कर दिया था। लाश का पोस्टमार्टम तो हर सूरत होना ही था, लेकिन इससे पहले चौधरी सिकंदर अली को टच करना भी ज़रूरी समझता था। मैंने कांस्टेबल बासित को लाश के पास छोड़ा और ख़ुद घोड़े पर सवार होकर फरीदपुर की जानिब रवाना हो गया। मैंने बासित को हिदायत कर दी थी कि मेरी वापसी तक वो लाश को सरकारी अस्पताल पहुंचाने के इंतजाम मुकम्मल कर ले। जिस मकाम पर हमने नहर से वो लाश निकाली थी, वहाँ से फरीदपुर कमोबेश 8 मील के फासले पर मशरिक की सिमत नहर के किनारे वाक़ई एक छोटा सा गांव था। इन दोनों मकामात के बीच में और कोई आबादी नहीं थी। बाबा अल्लाह रखा की बात में मुझे इसलिए भी वज़न महसूस हुआ
कि नामालूम मकतूल का ताल्लुक फरीदपुर से हो सकता था। अगलबुल इम्कान इस बात का था कि किसी ने इसे कत्ल करके उसकी लाश को हवाले नहर कर दिया होगा। आज अगरचे आसमान पर सूरज मौजूद था, लेकिन उसकी धूप सर्दी की मारी हुई थी। अगर मुझे वापसी में 3-4 घंटे भी लग जाते तो लाश के लिए किसी किस्म की तशवीश वाली कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा तो 3-4 घंटे का था, लेकिन 3-4 मिनट के बाद ही सूरत हाल में सनसनीखेज तब्दीली रोनुमा हो गई। जाए बको से फरीदपुर जाने के लिए मुझे नहर के किनारे और खेतों के दरमियान बने हुए कच्चे रास्ते पर सफ़र करना था। अभी मेरे घोड़े ने 200-300 गज का फासला तय किया था कि 2 घड़सवार मेरे करीब पहुंचकर रुक गए। वो दोनों मेरी मुखालिफ सिमत यानी फरीदपुर की तरफ से आ रहे थे। मजबूरन मुझे भी अपना घोड़ा रोकना पड़ा। इन दोनों घुड़सवारों के चेहरे के तासुरात ने मुझे बता दिया कि उनके पास कोई खुशी की कोई खबर नहीं होगी। क्या बात है? मैंने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और ये तुम्हारे चेहरों पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? क्या रास्ते में किसी पिछल पेरी को देख लिया है? हम लोग आपके थाने जा रहे थे, उनमें से एक ने बदहवासी के आलम में बताया। अच्छा, वो आप रास्ते में ही मिल गए। अब आप हमारे साथ चलिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? मैंने तेज़ नज़र से उन्हें घूरा। फरीदपुर, दूसरे ने जवाब दिया। फरीदपुर का नाम सुनकर मैं चौंक उठा, क्योंकि मैं तो खुद फरीदपुर ही की तरफ जा रहा था। मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, फरीदपुर में ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझे अपने साथ वहाँ ले जाना चाहते हो? चौधरी साहब को किसी ने कत्ल कर दिया है थानेदार साहब, उसने दुखी लहजे में बताया। दूसरा बोला, हम इस वाक़े की इतला देने आपके पास थाने आ रहे थे कि आप हमें रास्ते में ही मिल गए। बाद ऐसा मुझे उन दोनों घुड़सवारों के नाम राशिद और महनाज मालूम हुए, जिनमें राशिद पुस्तकामत और महनाज दराज कद था। चौधरी साहब के कत्ल के अल्फाज ने मेरे अंदर खुलबुली मचा दी थी। मैं पूछे बिना ना रह सका। तुम चौधरी सिकंदर की बात कर रहे हो? नहीं जनाब, उन्हें कोई क्या कत्ल करेगा, राशिद ने बताया। वो तो हिलने जुलने के भी काबिल नहीं है। फिर मैंने बारी बारी सवाली नज़र से उनकी तरफ देखा। हम चौधरी रुस्तम की बात कर रहे हैं थानेदार साहब, मिनहाज वजाहत करते हुए बोला कि चौधरी सिकंदर के इकलौते बेटे हैं। मेरा मतलब यह है कि इकलौते बेटे थे। चौधरी रुस्तम को किसने कत्ल किया है? मैंने सरसराती आवाज़ में दरियाफ्त किया। और ये वाक़या कब पेश आया? हमारे दरमियान तमाम तर गुफ्तगू घोड़ों पर सवार होकर हो रही थी। मेरे सवाल के जवाब में मिनास ने बताया, कातिल के बारे में तो फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वाक़या पिछले रात का है। छोटे चौधरी साहब की लाश उधर डेरे पर पड़ी है। ओह! मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। उसी लम्हे बाबा अल्लाह रखा से हासिल होने वाली मालूमात मेरे जहन में ताज़ा हो गई। फरीदपुर एक छोटा सा गांव था। बामुश्किल 70 से 80 घर होंगे वहाँ। लगभग 300 नफूस की आबादी में हर शख्स दूसरे की सूरत से आशना होता है। मैंने उनसे पूछा, अच्छी तरह सोचकर बताओ, क्या कल इस वाक़े के बाद फरीदपुर से कोई बंदा गायब हुआ है? बिल्कुल हुआ है थानेदार साहब, राशिद जल्दी से बोला। मिनाज ने इसरारी लहजे में इस्तफसार किया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि कादू गांव से गायब है? तो उसका नाम कादू है, मैंने मायनेखेज़ अंदाज में कहा। असल नाम तो कादिर है जनाब, लेकिन सब उसे कादू कहकर ही पुकारते हैं, राशिद ने बताया। कादू की ड्यूटी डेरे पर होती है, लेकिन वो सुबह ही से गायब है या शायद रात से। वो ड्यूटी पर इसलिए हाजिर नहीं हुआ कि अब वो ड्यूटी करने के काबिल नहीं रहा, मैंने मायनेखेज़ मगर संजीदा लहजे में कहा। ड्यूटी करने के काबिल नहीं रहा? राशिद भौचक्का नज़र से मुझे तकने लगा। महनाज ने कहा, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई थानेदार साहब। हमें तो शक था कि कादू छोटे चौधरी साहब के कत्ल में मुलव्विस है, इसलिए वो डेरे से कहीं फरार हो गया है। हो सकता है कादू ही ने चौधरी रुस्तम को कत्ल किया हो, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन पिछले रात वो खुद भी मकतूल हो चुका है। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो और मेरे इस अंदाजे की तस्दीक या तरदीद तुम दोनों करोगे। बात के काम पर मैंने बारी बारी राशिद और मिनहास की आंखों में झांका तो राशिद ने बेहद उलझे हुए अंदाज में मुझसे इस्तफसार किया, हम ये काम किस तरह कर सकते हैं थानेदार साहब? इस तरह, मैंने अपने घोड़े को वापसी के लिए मोड़ते हुए कहा। आओ मेरे साथ, पहले हम तुम्हें कादू से मिलवा दूं, इसके बाद हम फरीदपुर का रुख करेंगे। वो दोनों हक्का बक्का मेरी तकलीद में अपने घोड़े दौड़ाने लगे। चंद मिनट के बाद हम जाए वकू पर पहुंच गए, यानी इस मकाम पर जहाँ झाड़ियों की झुंड के नज़दीक नामालूम शख्स की गर्दन टूटी लाश रखी हुई थी। राशिद और महनाज के वहाँ पहुँचने से वो मुर्दा शख्स नामालूम नहीं रहा था। उन दोनों ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी, यानी वो चौधरी के नमक ख्वार कादिर उर्फ कादू ही की लाश थी। इसको क्या हुआ है थानेदार साहब? राशिद ने सहमी हुई नज़र से मेरी जानिब देखते हुए पूछा। इसे किसने कत्ल किया है? तुम लोगों का ख्याल था कि छोटे चौधरी के कत्ल में कादू का हाथ होगा, मैंने कहा, लेकिन ये बेचारा तो खुद भी कत्ल हो चुका है। कादू की गर्दन तोड़कर इसे सुप्रीद मौत किया गया है, और ये वाक़या फरीदपुर के करीब ही कहीं पेश आया है। इसकी लाश नहर के पानी में बहती हुए गुज़श्ता रात 12:30 बजे यहाँ पहुँची थी।
इस मकाम से फरीदपुर का फासला लगभग 8 मील है और आजकल अपर चनाब कमोपेश 4-5 मील फी घंटा रफ्तार से बह रही है, जो एक शख्स के पैदल चलने की अमूमी रफ्तार है। इस हिसाब से मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक कादू को पिछली रात 10:30 बजे के करीब फना के घाट उतारा गया है। वो बेहद उलझन ज़दा अंदाज में कभी मुझे और कभी कादू की लाश को तकने लगे। मैंने पहली फुर्सत में थाने से एएसआई याकूब को वहाँ बुलाया। दूसरी फुर्सत में मैंने कादू की लाश को एक रेड़े पर लदवाकर याकूब की निगरानी में ज़िला अस्पताल भिजवा दिया और तीसरी फुर्सत में कांस्टेबल बासित को साथ लेकर राशिद महनाज के हमरा फरीदपुर की जानिब रवाना हो गया। फरीदपुर का शुमार छोटे गांव में होता था। नहर के किनारे पर वाक़ई इस गांव की आबादी 300 से 400 अफराद के दरमियान रही होगी। फरीदपुर नामी इस मुख्तसर से गांव पर चौधरी सिकंदर अली का राज था, जो पिछले कुछ अरसे से फालिज का शिकार होकर बेबसी और मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहा था और इसी लाचार चौधरी के इकलौते बेटे रुस्तम अली को गुज़िश्ता रात किसी ने कत्ल कर दिया था। हम दोपहर के बाद फरीदपुर पहुँचे। मैंने राशिद से कहा, तुम लोगों ने बताया है कि छोटे चौधरी की लाश डेरे पर पड़ी है। जी थानेदार साहब, उसने अस्बात में जवाब दिया। बड़े चौधरी साहब ने हमें हुक्म दिया था कि जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल ना कर ले कोई शख्स डेरे के अंदर ना जाए, इसलिए हमने डेरे के बैरूनी दरवाजे पर ताला डाल दिया है। कि तुम लोगों ने अक्लमंदी का काम किया है। मैंने सताइशी नज़र से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तो चलिए पहले डेरे वाली कार्रवाई मुकम्मल कर लेते हैं, इसके बाद चौधरी सिकंदर से भी मुलाकात हो जाएगी। वो दोनों मेरे साथ चल पड़े। मस्कुरा डेरा नहर के किनारे खेतों के बीच बना हुआ था। डेरे के अंदर और बाहर दीवारों के साथ कद आवर दरख्त भी लगे हुए थे। ये डेरा निजी छतों वाले 3 कमरों पर मुश्तमिल था, जो एक ही कतार में आते के अगबी हिस्से में बने हुए थे। इसके आगे डेरे का कुशादा सहन था। कराची के पास ही इस सहन की कुशादगी को समझने के लिए इसको 1000 गज का कोई प्लॉट तस्वुर कर लें। हमने अपने घोड़ों को घने दरख्त के नीचे बांध दिया और डेरे के अंदर दाखिल हो गए। डेरे की बैरूनी दीवार के साथ पीपल और सफ़ेदे के कद आवर दरख्त थे। जिस दौरान में हम घोड़ों को पार्क कर रहे थे, मिन्हाज ने आगे बढ़कर डेरे का गेट नुमा चौबी दरवाज़ा खोल दिया था। मुझे वहाँ पर डेरे के आसपास कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दिए, जो यकीनन छोटे चौधरी की मौत पर दुखी और परेशान थे। डेरे के जहन में एक दीवार के साथ चंद मवेशी बंधे हुए थे, जो मौजूदा हालात से बेनियाजी अपने खड़लियों में चारे पर मुंह मारने में मसरूफ़ थे। इन्हें इस बात से मुतालिक फ़िक्र नहीं थी कि इनके मालिक का इकलौता बेटा दारे फ़ानी से कूच कर गया था। छोटे चौधरी की लाश किस कमरे में है? मैंने राशिद से सवाल किया। उसने दरमियान वाले कमरे की जानिब इशारा कर दिया। मैं कांस्टेबल बासित के साथ मस्कुरा कमरे के अंदर दाखिल हो गया और ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि वो कमरा किसी आलीशान बेडरूम का मंजर पेश कर रहा था, जिसकी एक दीवार के साथ आरामदेह पलंग बिछा हुआ था और चौधरी रुस्तम की लाश उसी पलंग पर पड़ी थी। मैंने रुस्तम की लाश का बागौर जायज़ा लिया तो इसके सर की चोट फ़ौरन ही मेरी निगाह में आ गई। चौधरी की खोपड़ी का अगबी हिस्सा पूरी तरह चटका हुआ था और वहाँ से निकलने वाले खून ने चौधरी के लिबास को भी जगह जगह से आलूदा कर रखा था। हत्या के बिस्तर के पास हिस्से भी खून के धब्बों से भरे हुए थे। मुझे समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि कातिल ने किसी आईनी शे की मदद से चौधरी रुस्तम के अकब से वार करके इसे मौत के घाट उतारा था। ये चोट इतनी कारी साबित हुई कि चौधरी की खोपड़ी का हशर नशर हो गया था और उसे ज़िंदगी से मौत की तरफ जाने में चंद सेकंड ही लगे होंगे। कातिल के हमले में बहुत ज़्यादा गम और गुस्से की निशानदेही होती थी। लाश के तफसीली मुआयने से फारिग होने के बाद मैंने इस सजे सजाए बेडरूम का तनकीदी जायज़ा लिया तो एक मेज़ पर मुझे कच्ची शराब की बोतलें रखी दिखाई दी। साथ ही एक गिलास भी पड़ा हुआ था, जो 1/4 शराब से भरा हुआ था। बोतल भी खुली हुई थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि अपनी मौत से कबल वो दुख्तर अंगूर से दिल बहला रहा था और बेखबरी में किसी सफाक शख्स ने उसे ज़िंदगी कैद से आज़ाद कर दिया था। दुख्तर अंगूर दुख्तर इंसान का तकाजा करती है। छोटा चौधरी इस डेरे पर इबादत गुजारी की नीयत से नहीं आया था। कमरे की सजावट और जामो मीना से पता चलता था कि डेरे का ये कमरा चौधरी रुस्तम की इशरत कदा है, जहाँ पर वो ऐशो अय्याशी के लम्हात गुजारने आया करता था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैंने मस्कुरे कमरे में दुख्तर इंसान के आसार भी दरियाफ्त कर लिए। बेड के नज़दीक कमरे के फर्श पर मुझे चूड़ियों के चंद टुकड़े पड़े दिखाई दिए। मैंने झुककर बड़ी एहतियात के साथ कच्चे फर्श पर से सुर्ख और सब्ज चूड़ियों के टुकड़े उठा लिए। चूड़ियाँ ख़वातीन का एक जेवर हैं। इसका मतलब यही था कि पिछली रात इस कमरे में छोटे चौधरी के साथ कोई औरत भी मौजूद थी और चूड़ियों के टुकड़े ये कहानी सुना रहे थे कि चौधरी ने इस औरत के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की कोशिश की थी, जिससे जाहिर होता था कि मज़कूरा औरत अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं आई थी, बल्कि इसे ज़बरदस्ती चौधरी की अय्याशी के सामान के तौर पर वहाँ पहुँचाया गया था। एक ख्याल बर्क रफ्तारी के साथ मेरे जहन में चमका, कहीं इसी औरत ने तो चौधरी रुस्तम को मौत के घाट नहीं उतारा।
یہ ممکنات میں تھا۔ ان لمحات میں میرے رگوں پہ میں خون کی گردش خاصی تیزی آ گئی تھی۔ راشد اور مناس کمرے کے باہر موجود تھے۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا، پھر باری باری دونوں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، رات کو چودھری رستم کے ساتھ ڈیرے پر اور کون تھا؟ یہاں پر تو صرف کادو ہی ہوتا ہے، منہاس نے جواب دیا۔ پچھلی رات بھی وہی تھا جناب۔ میں نے اپنی ناک پر انگلی رکھ کر مخصوص انداز میں کہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کون تھی وہ؟ آپ کسی عورت کا پوچھ رہے ہیں؟ راشد نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، پھر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے انہیں دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، یہ مجھے کمرے کے کچے فرش پر پڑے ملے ہیں۔ یقیناً پچھلی رات کوئی عورت یہاں موجود تھی اور چودھری نے شراب کے نشے میں اس کے ساتھ دست درازی بھی کی تھی۔ بتاؤ کون تھی وہ؟ ہم کسی عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سرکار، راشد نے منظر انداز میں کہا۔ اگر کوئی عورت رات کو ڈیرے پر آئی تھی تو کادو کو ہی اس کا پتہ ہوگا۔ تم جس کادو کا نام لے رہے ہو وہ خود ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو چکا ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اب مجھے جو کچھ بھی بتانا ہے وہ آپ لوگوں کو ہی بتانا ہے۔ اگر تم لوگوں نے شرافت سے زبان نہیں کھولی تو تم دونوں طویل مدت کے لیے جاؤ گے سیدھے جیل میں۔ جناب، آپ ہماری بات کا یقین کریں، مناس گھگیایا، ہمیں واقعی اس معاملے کی خبر نہیں۔ کادو پر چھوٹے چودھری بہت اعتماد کرتے تھے۔ کادو ان کے ہر راز میں شریک تھا، مگر وہ شریک راز اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، لہٰذا کادو سے پوچھ گچھ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور چودھری رستم کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے۔ کادو کی لاش کو میں تم دونوں کے سامنے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا چکا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اسی مقصد کے لیے چودھری رستم کی لاش کو بھی روانہ کر دوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لاشوں کی چیر پھاڑ سے سارے حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا تو پھر مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہیں رکھنا۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اگر تم اس واقعے کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ میرے انداز میں واضح دھمکی موجود تھی۔ وہ دونوں منت سماجت کرنے لگے کہ ان کا اس اندھوناک واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ پچھلی رات ڈیرے پر کسی عورت کی موجودگی سے واقف بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کا ابتدائی بیان نوٹ کر لیا، جس کے مطابق چھوٹا چودھری کبھی کبھار رات گزارنے ڈیرے پر آ جایا کرتا تھا۔ اپنے آرام کی غرض سے رستم نے ڈیرے کے ایک کمرے کو شاہانہ انداز میں سیٹ کر رکھا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ رستم شراب نوشی کرتا تھا اور وہ طبعاً عیاش بھی تھا، لیکن یہ بتانے سے قاصر تھے کہ گزشتہ رات ڈیرے پر کون عورت موجود تھی۔ راشد اور مناس نے مجھے بتایا کہ عموماً چھوٹا چودھری رات کی کسی پہر یا صبح ہونے سے پہلے کسی وقت واپس حویلی پہنچ جایا کرتا تھا۔ آج صبح جب رستم علی حویلی کے اندر دکھائی نہیں دیا تو اس کی تلاش شروع ہوئی۔ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ چھوٹے چودھری کو فرید پور کے گھروں کے اندر ڈھونڈا جاتا۔ وہ ایک ہی جگہ پایا جا سکتا تھا اور وہ مقام تھا ڈیرہ۔ چودھری سکندر علی نے راشد کو ڈیرے کی جانب دوڑایا۔ راشد اور مناس کا شمار چودھری سکندر کے قابل اعتماد خدمت گاروں میں ہوتا تھا۔ وہ حویلی کے اندر مفلوج چودھری کا بہت خیال رکھتے تھے۔ راشد جب ڈیرے پر پہنچا تو کادو اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ چودھری کی کھوج میں جب اس کے لیے مخصوص کمرے میں داخل ہوا تو ایک خون چکا منظر نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بھاگ حویلی پہنچا اور چودھری سکندر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس اطلاع سے حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ چودھری سکندر نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے راشد اور مناس کو میری جانب دوڑا دیا تھا۔ میں مفلوج چودھری کے متعلق بندوں کے انٹرویو میں مصروف تھا کہ کانسٹیبل باسط کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ انکشاف انگیز انداز میں بتا رہا تھا، ملک صاحب یہ دیکھیے مجھے کچھ ملا ہے۔ میں فی الفور باسط کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ہاتھ میں ایک آہنی رینچ تھامے کھڑا تھا۔ مذکورہ پانے کا سائز کافی بڑا تھا۔ اسے رینچ پانے ٹریکٹرز اور بھاری مشینری کے نٹ بولٹ کھولنے اور کسنے کے کام آتے ہیں۔ سب سے اہم اور دلچسپی کی بات یہ تھی کہ متذکرہ رینچ پانے کی ہیڈ پر جمے ہوئے خون کے آثار پائے جاتے تھے۔ میں نے جب پانے کے سر کا بغور جائزہ لیا تو جمے ہوئے خون کے اندر مجھے چند انسانی بال بھی چپکے ہوئے نظر آئے۔ اغلب الامکان یہی تھا کہ اسی پانے کی طوفانی ضرب نے چودھری رستم کی کھوپڑی کا ستیہ ناش مار دیا تھا۔ پانے کے سر پر لگا ہوا خون سرد موسم کی وجہ سے جم گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے بخوبی یہ پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ رینچ کے ہیڈ پر جمع ہوا خون اور اس کے اندر چپکے ہوئے بال چودھری رستم کے ہی تھے یا کسی اور کے تھے۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور عدالت میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، ورنہ اس رینچ کے دستے پر پائے جانے والی انگلیوں کے نشانات بآسانی قاتل تک رہنمائی کر سکتے تھے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ یہ پلنگ کے سرہانے والی دیوار کے قریب پڑا ہوا تھا، باسط نے بتایا اور بیان کردہ لوکیشن کی سمت اشارہ بھی کر دیا۔
मुझे लगता है हमने आलिया कत्ल बाजियाब कर लिया है। सर दस्त मुझे भी यही महसूस हो रहा है, मैंने बासित की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा। अगलबल इम्कान इसी बात का है कि इस रेंज की कारी ज़र्ब ने चौधरी रुस्तम की ज़िंदगी का चिराग गुल किया है। ताहम हतमी राय कायम करने के लिए लेबॉर्ट्री रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। तुम इस आईनी रेंज को अपने पास महफूज कर लो। कांस्टेबल बासित ने मेरे हुक्म पर अपने साथ लाए हुए रैगज़ीन के थैले में मस्कुरा रेंज को बाहिफाजत रख दिया। इसके बाद मैंने राशिद और महनाज की जानिब देखते हुए कहा, तुम जल्द से जल्द चौधरी रुस्तम की लाश को अस्पताल भिजवाने के लिए किसी सवारी का बंदोबस्त करो, जब तक मैं दिगर काम निपटाता हूँ। गांव के इस वक्त बशीर कोचवान का तांगा बासानी मिल सकता है, राशिद ने बताया। बशीर कोचवान को रात से बहुत तेज़ बुखार है, आज उसने तांगा निकाला ही नहीं। ठीक है, मैंने अस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। तांगा, रेड़ा, बैलगाड़ी जो भी मैसर हो फ़ौरन यहाँ ले आओ ताकि लाश को अस्पताल रवाना किया जा सके। वो दोनों मेरे हुक्म की तामील करने डेरे से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मैं और बासित तफसीली खाने तलाशी में मसरूफ़ हो गए। इस डेरे में कुल 3 कमरे एक कतार में बने हुए थे। दरमियान वाले कमरे का मैं अच्छी तरह जायज़ा ले चुका था। ये वही कमरा था जहाँ एक शानदार बेड चौधरी रुस्तम की लाश पड़ी हुई थी और इसी कमरे में से बासित ने आले कत्ल भी बरामद कर लिया था। इस कमरे में मजीद किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी। चौधरी रुस्तम मकतूल के बेडरूम की एक बगल में कादो मकतूल का कमरा था और दूसरी बगल में स्टोर रूम यानी तीसरा कमरा स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। मज़कूरा कमरे में मवेशियों के चारे के अलावा चंद ज़रूरी आलात भी रखे दिखाई दिए। अगलबल इम्कान इसी बात का था कि कातिल ने वो आहनी रेंज यहीं से उठाया होगा, क्योंकि इसी नौयत के मुख्तलिफ औजार कमरे के एक कोने में फर्श पर पड़े नजर आ रहे थे। कादिर उर्फ कादो के ज़ेर इस्तेमाल कमरे में से मुझे कोई भी काबिल ज़िक्र चीज़ हाथ नहीं लगी जिसकी मदद से मैं कातिल की रसाई हासिल करने की कोशिश कर सकता। कानून के नज़र में इस डेरे पर से मुझे काम की सिर्फ 3 चीज़ें ही मिली थी जिनकी मदद से मैं तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ा सकता था, और वो 3 चीज़ें ये थीं। नंबर 1 खून आलू सर वाला आहनी रेंज, और नंबर 2 टूटी हुई सुर्ख और सब्ज चूड़ियों के टुकड़े, नंबर 3 चौधरी सिकंदर अली के इकलौते सपूत चौधरी रुस्तम की लाश। थोड़ी ही देर में राशिद और महनाज बशीर कोचवान का तांगा लेकर डेरे पर पहुंच गए। इस वक्त महनाज तांगे को ड्राइव कर रहा था। मैंने ये एजाज़ उसी के पास रहने दिया और चौधरी रुस्तम की लाश को तांगे पर रखवाकर मैंने कांस्टेबल बासित की निगरानी में ज़िले अस्पताल भिजवा दिया और ख़ुद में राशिद के हमरा चौधरी सिकंदर के पास पहुँच गया। चौधरी सिकंदर अली एक उम्र रसीदा, बेबस और लाचार शख्स था। फालिज के अटैक ने पिछले कुछ अरसे से चौधरी को बिस्तर तक महदूद करके दूसरे इंसानों को मोहताज बना दिया था। उसके जिस्म का निचला हिस्सा बेजान और नाकारा हो चुका था। राशिद मुझे चौधरी सिकंदर के पास पहुंचाकर कमरे से बाहर निकल गया था। इस वक्त चौधरी कमरे में अकेला ही था और उसकी हालत खासी अबतर हो रही थी। फालिज ने पहले ही उसे काफ़ी मजबूर कर रखा था। उस पर इकलौते बेटे की मौत ने उसे अंदर बाहर से तोड़ डाला था। वो बेड पर टेक लगाए नीम दराज बैठा खामोश आंसू बहा रहा था। मैंने उसे सलाम करके पलंग के नज़दीक रखी कुर्सी पर बैठ गया और हमदर्दी भरे लहजे में कहा, चौधरी साहब, मुझे आपके जवान बेटे की मौत का बड़ा दुख है। आपके दुखी होने से रुस्तम वापस तो नहीं आ जाएगा मलिक साहब। वो पुरनम आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, चौधरी साहब, ये एक सफाक हकीकत है कि आपका बेटा जहाँ चला गया है वहाँ से तो कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, हम सबको इस सच्चाई को तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन आपसे मेरा यह वादा है कि मैं भोलजर रुस्तम के कातिल को गिरफ्तार करके उसे इबरतनाक सज़ा दिलवाऊंगा। इस मकसद के लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत होगी। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है मलिक साहब। वो रूहान सी आवाज़ में बोला, मेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकेगी। मैं बे औलाद बे नामो निशान इस दुनिया से जाऊँगा। मैं चौधरी की दिली कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। अपने काम की मालूमात हासिल करने के लिए उसकी दिलजोई और हौसला अफजाई ज़रूरी थी। वो जज्बाती सदमे से किसी हद तक बाहर निकलता तो तभी उसके साथ सूदमंद गुफ्तगू की जा सकती थी। आप बे औलाद नहीं हैं चौधरी साहब। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, माशाल्लाह आपकी 3 औलादें और भी हैं और सब और इनकी औलादें आपके नाम को हमेशा ज़िंदा रखेंगी। मलिक साहब, नस्ल हमेशा बेटे से चलती है और रुस्तम मेरी इकलौती औलाद नरीना थी। वो संभले हुए लहजे में बोला, रुस्तम 25 साल का हो चुका था। मैं काफ़ी अरसे से उसकी शादी करने का सोच रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई मसला आड़े आ जाता था। शायद मेरे नसीब में ही नहीं था कि मेरी नस्ल आगे बढ़े। बाकी जहाँ तक मेरी दिगर औलादों की बात है तो लम्हाती तौक़ुफ़ करके उसने एक अफसरदा से सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, वो तीनों मेरी बेटियां हैं और तीनों ही शादीशुदा हैं। उनसे पैदा होने वाली औलादें मेरी नस्ल में शुमार नहीं होंगी। सलमा, खालदा और रिफ़त अपने शोहरों की नस्ल को आगे बढ़ाएंगी। रिफ़त रुस्तम से 5 साल छोटी है। मुनासिब वक्त पर मैंने उसकी शादी कर दी थी। बस रुस्तम ही को कुछ नहीं हो रहा था। इंसान अपने नसीब से नहीं लड़ सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। मैंने तायरी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, वाकई इंसान अपने नसीब और नसीब बनाने वाले से कभी नहीं जीत सकता। इसके फैसलों के आगे सरे तस्लीम खम करना ही पड़ता है।
رخسانہ کی موت کے وقت میں کاتب تقدیر سے بہت لڑا تھا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، لیکن میری کوئی پیش نہیں چلی۔ وہ جیت گیا، میں ہار گیا۔ میری شریک حیات رخسانہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ رخسانہ کی موت نے مجھے توڑ ڈالا تھا اور رستم کی موت نے مجھے بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ میں چند لمحات تک چودھری سکندر کے ساتھ تسلی تفشی کی باتیں کرتا رہا۔ میری مخلصانہ اور ہمدردی بھری باتوں نے اس کے صدمے کو خاصی حد تک کم کر دیا۔ میں نے محسوس کیا چودھری کی ذہنی حالت اس حد تک ہموار اور سازگار ہو چکی ہے کہ اب اس کے ساتھ نہایت ہی اہم اور سنجیدہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں نے جائے وقوع پر جو کچھ دیکھا تھا اس کا خلاصہ چودھری سکندر کے گوش گزار کرنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آپ کو کس پر شک ہے؟ آج صبح جب میں اس اندھوناک واقعے کی اطلاع ملی تو اس وقت میرا شک کادو کی طرف گیا تھا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ کادو منظر سے غائب ہے۔ چودھری نقاہت بھرے انداز میں بولا، لیکن تھوڑی دیر پہلے راشد اور مہناز کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو کادو کی لاش ملی گئی ہے، جو فرید پور سے نہر کے پانی میں بہتے ہوئے آپ کے علاقے میں چلی گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے جب راشد اور مہناز کو سواری کا بندوبست کرنے بھیجا تھا تو انہوں نے چودھری سکندر کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے چودھری کے ہاتھ کو باآہستگی بستر پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کادو پر شک نہیں رہا؟ میرا شک پوری طرح رفع نہیں ہوا۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، بلکہ اس شک کے ساتھ یہ سوال بھی نتھئی ہو گیا ہے کہ کادو کو قتل کر کے کس نے نہر میں پھینکا؟ چودھری صاحب، آپ کے اس سوال اور اس سے جڑے دیگر درجنوں سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہوگی، میں نے گھمگیر انداز میں کہا۔ آپ حکم کریں، وہ پرعزم انداز میں بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ کادو اور رستم کی موت دو مختلف انداز میں واقع ہوئی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کادو کی گردن کا منکا توڑ کر اسے صورت اجل کیا گیا ہے، جبکہ رستم کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر آہنی وزنی رینچ کا خطرناک وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اس امر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے کادو نے رینچ کی مدد سے رستم کی جان لی اور جب وہ جائے وقوع سے فرار ہو رہا تھا تو کسی نے اس کی گردن کا منکا توڑ کر اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا۔ کس نے؟ چودھری سکندر نے اضطراری انداز میں استفسار کیا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو فرید پور کی آبادی 300 افراد سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آپ کا اندازہ درست ہے، وہ سر کو اثباتی جنوش دیتے ہوئے بولا۔ فرید پور ایک چھوٹا گاؤں ہے، اس کی آبادی کم و بیش اتنی ہی ہوگی۔ کیا آپ ملازم سے کہہ کر فرید پور کے تمام افراد کو حویلی میں بلا سکتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ صرف مرد و زن کو، بچوں کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل لا سکتا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ اگر بچوں کو نکال دیا جائے تو تعداد ویسے ہی گھٹ کر 210 سوا 200 پر رہ جائے گی، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ پہلے فرید پور کے تمام جوان مرد اور عورتوں کو حویلی میں بلانے کے لیے احکامات صادر کریں، پھر میں اپنا مقصد بھی آپ پر واضح کر دوں گا، میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ سارا کشت قاتل کی تلاش کے سلسلے میں اٹھا رہا ہوں۔ تو آپ کے خیال میں رستم اور کادو کا قاتل فرید پور میں چھپا بیٹھا ہے؟ چودھری نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ اس بات کو خارج از امکان نہیں سمجھا جا سکتا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ مجھے ایک مرد اور ایک عورت کی تلاش ہے۔ اگر میرے مطلوبہ یہ دونوں افراد مجھے مل جائیں تو میں پچھلی رات پیش آنے والے دوہرے قتل کے سنگین واقعے کی تہہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ چودھری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تو یہ بات ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کو کس قسم کے ایک مرد اور ایک عورت کی تلاش ہے؟ ایسا مرد جو شاہ زور ہو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پہلوانی اور کبڈی کا ماہر، شاہ زوری کے تمام داؤ پیچ میں تاک چاقو چوبند۔ فرید پور میں تو ایسا ہی ایک بندہ ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اس کا نام صدیق ہے، لیکن وہ کالا بھولا کے نام سے مشہور ہے، کچھ لوگ اسے کالا پہلوان بھی کہتے ہیں۔ اوہ، تو یہ بھولا پہلوانی کرتا ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی، وہ اسبات میں گردیں ہلاتے ہوئے بولا، بھولا ہمارے گاؤں کی آبرو ہے ملک صاحب، آلے دوالے کی کسی گاؤں دیہات میں اس کا جیسا پھرتیلا اور چاقو چوبند کوئی پہلوان نہیں ہے۔ بس تو پھر آپ مردوں میں صرف اسی پھرتیلے پہلوان کالا بھولا کو یہاں بلا لیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں بھولا سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کادو کی گردن کا منکا توڑنے میں اسے کتنا وقت لگا ہوگا۔ میرے آخری جملے نے چودھری سکندر علی کے چہرے پر سنسنی دوڑا دی۔ اس نے بے حد حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ کادو کی گردن کا منکا بھولا نے توڑ کر اسے ہلاک کیا ہے؟ میں بھولا کے تفصیلی انٹرویو کے بعد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ پاؤں گا، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، لیکن ایسا سوچنے میں فی الحال کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ… میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ڈرامائی انداز میں چودھری سکندر کی طرف دیکھا اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا کہ رستم کو بھی بھولا پہلوان ہی نے قتل کیا ہو۔ آپ ایک ناممکن بات کر رہے ہیں ملک صاحب،
वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, भोला ऐसी संगीन गलती कभी नहीं कर सकता। वो एक नामूर पहलवान ज़रूर है, मगर इसके अंदर इतनी जुर्रात नहीं कि वो मेरे बेटे की ज़िंदगी से खेलने के बारे में कभी ख्वाब में भी सोच सके। मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि भोला पहलवान ने ही कादू या रुस्तम को मौत के घाट उतारा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने एक इम्कान की जानिब इशारा किया है। ठीक है, मैं आपके हुक्म के मुताबिक भोला को हवेली में बुलाता हूँ। वो मसलत आमेज लहजे में बोला, इससे पूछताछ करके आप अपनी तसल्ली कर लें और गांव की तमाम औरतों को भी यहाँ बुलाना है। चौधरी साहब, मैंने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। उसने राशिद को अपने पास बुलाकर हस्बे मंशा हिदायत जारी कर दी। फिर मेरी जानिब मुतवज्जा होते हुए उलझन ज़दा लहजे में बोला, एक बात मेरी समझ में नहीं आई मलिक साहब। कौन सी बात? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। ये आप फरीदपुर की औरतों को किस सिलसिले में लाइन हाजिर कर रहे हैं? शनाख्त परेड का सिलसिला है चौधरी साहब, मैंने मायनेखेज अंदाज में जवाब दिया। उसकी उलझन में हैरत भी शामिल हो गई। किस नौयत की शनाख्त परेड? मुझे एक ऐसी औरत की तलाश है जो गुज़िश्ता रात आपके बेटे रुस्तम अली के साथ डेरे पर मौजूद थी, मैंने इंकशाफ अंगेज अंदाज में बताया। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। मैंने चौधरी सिकंदर को बताया कि उधर डेरे पर रुस्तम वाले कमरे में मैंने क्या क्या देखा है। ये सब थोड़ी देर पहले भी उसके कोश गुजार कर चुका था। ताहम इस वक्त चौधरी रुस्तम की मौत के सदमे में इस कदर गर्क था कि उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब की बार उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर तशवीश भरे लहजे में बोला, रुस्तम की मैं नोशी तो मेरे इल्म में है, लेकिन इस औरतों वाले चक्कर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। क्या कभी कादू ने भी आपको इस हवाले से कुछ नहीं बताया? नहीं, वो दो टोक अंदाज में बोला। इस अमर में किसी शक व शोबे की गुंजाइश नहीं कि गुज़िश्ता रात डेरे पर रुस्तम अली के साथ एक औरत भी मौजूद थी। मैंने अपने तजुर्बे को चौधरी सिकंदर के इल्म में लाते हुए कहा, रुस्तम शराब के नशे में चूर था। लेबॉर्ट्री टेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी बात की तस्दीक कर देगी। नशे की हालत में रुस्तम ने इस औरत के साथ दस्त दराजी की कोशिश की थी, जिसकी वजह से औरत की कई चूड़ियाँ टूट गईं। मेरे ख्याल में 4-5 चूड़ियाँ तो लाजमी टूटी होंगी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर हरी और लाल चूड़ियों के दर्जन भर टुकड़े चौधरी को दिखाते हुए इन अल्फाज में अपनी बात पूरी कर दी। डेरे पर रुस्तम के कमरे के फर्श पर मैंने चूड़ियों के इन टुकड़ों को उठाया है। अब तो सारी कहानी आपकी भी समझ में आ गई होगी। आपकी बात तो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ मलिक साहब, वो पुरख्याल अंदाज में बोला, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा। जब ठोस और जीता जागता सबूत आपकी आंखों के सामने उजागर होगा तो फिर आपको यकीन भी आ जाएगा, मैंने पुरवसूख लहजे में कहा। मैंने फरीदपुर की औरतों की शनाख्त परेड इसी मकसद से रखी है। अगर इस गांव की कोई औरत पिछली रात रुस्तम के कमरे में मौजूद थी तो उसकी कलाइयों पर ताज़ा जख्मों के निशानात लाजमी होंगे। ये मुमकिन नहीं कि इतनी चूड़ियाँ टूट जाएं और कलाइयों पर खराश तक ना आए। आप यकीनन मेरी बात की तह तक पहुँच गए होंगे चौधरी साहब। उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने कहा, शनाख्त परेड में जिस भी औरत की कलाई या कलाइयाँ जख्मी पाई जाएंगी, मैं सिर्फ उसी से तफ्तीश करूँगा और मुझे यकीन है वो घायल औरत और भोला पहलवान इस दोहरे कत्ल के मामले को हल करने में बहुत मुआविन और मुफीद साबित होंगे। अगले 1 घंटे में मेरे मुतालबे को अधूरे अंदाज में पूरा कर दिया गया। वो इस तरह के भोला पहलवान हवेली में हाजिर नहीं हो सका था। उसके बारे में पता चला कि वो आज सुबह एमनाबाद चला गया था। एमनाबाद में भोला की चाची रहती थी। उसकी वापसी आइंदा रोज़ मुतवक्का थी। मैंने हवेली में बुलाई जाने वाली तमाम औरतों की कलाइयों को अच्छी तरह चेक किया तो पता चला किसी एक औरत की कलाई पर भी चोट या जख्म का कोई ताज़ा निशान मौजूद नहीं था। इस बात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने थोड़ा वक्त मज़ीद सर्फ करके इस अमर की तसल्ली कर ली कि गांव की कोई औरत चेकिंग से रह तो नहीं गई। मुझे बताया गया कि सिवाय एक औरत के मैंने फरीदपुर के वैसनिक तमाम औरतों की कलाइयाँ चेक कर ली हैं। चेकिंग वाला ये प्रोसेस हवेली के कुशादा सहन में जारी था। चौधरी सिकंदर इस अमल में शामिल नहीं था। वो हवेली के अंदर अपने कमरे में मौजूद था। मैंने एक औरत की खबर देने वाले से इस्तफसार किया, कौन औरत चेकिंग के मरहले से गुजरने से रह गई है? उसका नाम नूरी है, मुझे बताया गया। मैंने पूछा, नूरी यहाँ क्यों नहीं आई? क्या वो फरीदपुर में मौजूद नहीं? नूरी मासी उधर ही है थानेदार साहब, उसने शख्स ने बताया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने घर में है। नूरी मासी के अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, नूरी की उम्र क्या होगी? मासी का लफ्ज़ कराची में घरेलू मुलाजमा या नौकरानी के लिए इस्तेमाल होता है, मगर गांव देहात ख़ुसूसन पंजाब के गांव और शहरों में मासी का मतलब है खाला। अगर कोई औरत रिश्ते में किसी की खाला ना भी हो तो अमूमन अधेड़ उम्र या ज़ईफ़ औरतों को खाला और चाची कहकर मुखातिब किया जाता है। मैंने उसी निस्बत से नूरी मासी की उम्र के बारे में सवाल किया था। नूरी मासी की उम्र 50 के करीब है। थानेदार साहब राशिद ने मुझे बताया। बस दोनों मियाँ बीवी ही घर में हैं। नूरी का घर वाला दीन मोहम्मद उर्फ बाबा दीना एक अंधा इंसान है। नूरी मासी एक होशियार औरत है, लेकिन इस वक्त तबीयत की खराबी ने उसे चारपाई से लगाया हुआ है, इसी सब वो यहाँ नहीं आ सकी।
नूरी की उम्र का सुनकर मैंने एक गहरी सांस खारिज की। नूरी मेरी मतलूबा औरत नहीं हो सकती। रुस्तम खुद से दुगनी औरत के साथ रात गुजारने का प्रोग्राम नहीं बना सकता था। ताहम मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद नूरी के घर जाकर उसकी तबीयत की खबर लूँगा और साथ ही उसकी कलाइयाँ भी चेक कर लूँगा। तुम नूरी के घर तक मेरी रहनुमाई करोगे। ठीक है थानेदार साहब, वो फौरन से बोला, जो आपका हुक्म, मैं हाजिर हूँ। मैं ज़रा चौधरी साहब से एक ज़रूरी बात कर लूँ, मैंने कहा, फिर चलते हैं नूरी की तरफ। उसने इस में सर हिला दिया। मैं हवेली के अंदरूनी हिस्से में चौधरी सिकंदर अली के पास पहुँच गया। एक मरतबा फिर बेटे की मौत के सदमे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इन लम्हात में वो सदियों का बीमार नजर आ रहा था। उसने उम्मीद भरी निगाह से मुझे देखा और गमज़दा लहजे में इस्तफसार किया, कुछ पता चला मलिक साहब? बहुत जल्द सब पता चल जाएगा, मैंने गोलमोल जवाब दिया। फिर कहा, आपके गांव की इज्जत और आबरू भोला पहलवान जैसे ही एमराबाद से वापस आए, आप इसे मेरे पास थाने भेजेंगे। मुझे यकीन है भोला से पूछताछ काफ़ी सूदमंद साबित होगी। फरीदपुर की औरतों की कलाइयाँ चेक करने से आपको काम की कोई बात पता चली? चौधरी ने सवाली नज़र से मुझे देखा। एक औरत के सिवा मैंने गांव की तमाम औरतों की कलाइयाँ अच्छी तरह चेक कर ली हैं, मैंने बताया, और इनमें से किसी एक की भी कलाई पर ताज़ा जख्म के निशान, हत्या कि एक खराश तक मौजूद नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछली रात रुस्तम के साथ डेरे पर गांव की कोई औरत मौजूद नहीं थी, उसने तस्दीक तलब अंदाज में कहा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, लेकिन ये बात तय है कि वक़्ए की रात रुस्तम के कमरे में कोई औरत मौजूद थी और रुस्तम ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, जिसके नतीजे में मज़कूरा औरत की चूड़ियाँ टूट गई थी। लेकिन आपने तो फरीदपुर की सारी औरतों की कलाइयों को मुआयना कर लिया है। चौधरी सिकंदर ने सोचती हुई नज़र से मुझे देखा और कहा, कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि वो औरत कहीं और से लाई गई थी? क्या ऐसा होना नामुमकिनात में से है? उल्टा मैंने चौधरी से सवाल कर डाला। नहीं, ऐसा हो सकता है, वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपकी मतलूबा औरत गई कहाँ? मैं इस सवाल का जवाब बहुत जल्द तलाश कर लूँगा, मैंने पुरअज़म लहजे में कहा। एक बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती कि पिछली रात डेरे पर रुस्तम के कमरे में कोई औरत मौजूद थी, और मुझे इस बात का भी पक्का यकीन है कि वो औरत राजी खुशी अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गई थी। अगर इस शब बिसरी में उस औरत का इरादा शामिल होता तो वो रुस्तम की किसी भी खरमस्ती की मज़ाहमत ना करती। रुस्तम शराब के नशे में उसके साथ जैसे भी पेश आता वो इसे बर्दाश्त करती, लिहाजा उसकी चूड़ियाँ टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका तज्जिया मेरी समझ में आ रहा है मलिक साहब, वो फिक्रमंदी से बोला। आपकी बातें सुनकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि कहीं उस औरत ने तो रुस्तम की जान नहीं ले ली। ऐसा हो सकता है चौधरी साहब, मैंने उसकी सोच की तस्दीक करते हुए कहा। इसलिए तो मैं एक मर्द और एक औरत की तलाश में हूँ, ताकि रुस्तम और कादू की पुरस्कार मौत का मामला हल किया जा सके। औरत ने किसी को कत्ल किया या नहीं, लेकिन वो पिछली रात रुस्तम के कमरे में मौजूद ज़रूर थी, और कादू की गर्दन का मनका जिस महारत के साथ तोड़कर उसे मौत के घाट उतारा गया है, वो किसी शहज़ोर मर्द का ही काम है। अगर कादू ना मारा जाता तो इस औरत के बारे में सारी मालूमात फराहम कर सकता था। चौधरी सिकंदर ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा, वो रुस्तम के साथ साय की तरह लगा रहता था। यूँ समझ लें कि रुस्तम कादू पर बड़ा भरोसा करता था। आप फिक्र न करें चौधरी साहब, मैंने मजबूत लहजे में कहा, मैं बहुत जल्द आपकी कोई खुशखबरी सुनाऊंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी सुकून की खबर तो ये होगी कि रुस्तम का कातिल गिरफ्तार हो जाए और इसे आप इबरतनाक सज़ा दिलवाएं। ऐसा ही होगा, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। अब मुझे इजाज़त दे, मैं बहुत जल्द दोबारा हाजिर होऊंगा। मैं कितना लाचार और बदनसीब हूँ कि आपको रुखसत करने के लिए हवेली के गेट तक भी नहीं जा सकता। वो बेबसी से बोला। कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैंने उसे दिलासा दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको सेहत याब कर दे, ताकि आप हवेली के गेट तक नहीं बल्कि इस गांव से बाहर आने जाने के काबिल भी हो जाएं। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे मलिक साहब, वो उम्मीद भरे लहजे में बोला। मैं चौधरी सिकंदर अली को तसल्ली तफशीह देने के बाद हवेली से निकल आया और राशिद के हमरा मासी नूरी के घर की जानिब रवाना हो गया। नूरी की उम्र के बारे में जान लेने के बाद इस अमर के इम्कानात सिफर के बराबर रह गए थे कि गुज़िश्ता शब वो रुस्तम के कमरे में डेरे पर मौजूद होगी। लेकिन ये दो अफराद के पुरस्कार कत्ल का मामला था, लिहाजा तफ्तीश के मामूली से इम्कान को नज़रअंदाज करना एक संगीन गलती होती। अगर नूरी की चेकिंग बाकी रह गई थी तो मुझे हर हाल में इस काम को मुकम्मल करना था। राशिद मुझे नूरी के घर में दाखिल करके खुद बाहर ही रुक गया था। नूरी के खासा तेज़ बुखार था, ताहम वो इस काबिल थी कि मैं उससे पूछताछ कर सकूं। नूरी 50 से मुतवाजिज़ एक आम सी घरेलू औरत थी। उसकी आंखों में जहानत की चमक थी। बुखार की ज़्यादती ने उसे खासा कमज़ोर कर दिया था। उसका घरवाला बाबा दीना भी एक चरपाहे पर लेटा हुआ था। दीन मोहम्मद ने मेरी आमद का नोटिस नहीं लिया था। या तो वो सोया हुआ था और या फिर वो अंधा होने के अलावा बहरा भी था। बाद अज़ा मुझे पता चला कि दीन मोहम्मद पैदाइशी अंधा नहीं था। इसकी निगाह इस कदर कमज़ोर हो गई थी कि उसका शुमार नाबीना अफराद में किया जा सकता था। दीन मोहम्मद की उम्र 70 से कुछ ऊपर ही थी। ये एक बेऔलाद जोड़ा था।
मैंने नूरी को अपनी आमद की गर्ज से आगाह करने के बाद कहा, मासी मैं तुम्हारी कलाइयाँ चेक करना चाहता हूँ, ज़रा अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लो। नूरी कादू और चौधरी रुस्तम को पेश आने वाले वाक़ये से आगाह थी। वो मेरे हुक्म की तामील करते हुए उलझन ज़दा लहजे में मुस्तफसिर हुई। थोड़ी देर पहले एक औरत मुझे बताकर गई है कि आपने गांव की सारी औरतों को चौधरी साहब की हवेली में बुलाकर उनकी कलाइयाँ चेक की हैं। ये क्या चक्कर है? मैंने उसकी कलाइयों पर बागौर मुआयना करते हुए गमगीन अंदाज में कहा, मासी तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया गया है। मुझे एक ऐसी औरत की तलाश है जिसकी कलाइयों पर ताज़ा जख्मों के निशान हो। वो औरत पिछली रात डेरे पर चौधरी रुस्तम के कमरे में मौजूद थी। फिर मैंने मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में नूरी को नामालूम औरत के साथ रुस्तम की दस्त दराजी और चूड़ियों के टूटने का किस्सा सुना डाला। वो बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से मेरी बात सुनती रही, फिर अपनी कलाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये तो आप इस बात की तस्दीक के लिए यहाँ आए हैं कि कहीं पिछली रात डेरे पर चौधरी के साथ मैं तो नहीं थी? उसके सवाल में खफगी पाई जाती थी और मैं समझता हूँ वो अपने जज्बात के इजहार का हक रखती थी। मैंने उसकी तसल्ली और इत्मीनान की खातिर कहा, नूरी मासी पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। ये सब मामूल की पूछताछ है। इस इलाके में दो जीते जागते इंसानों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया है। मुझे हर कीमत पर उनके कातिल या कातलों तक रसाई हासिल करना है। ये चेकिंग उसी सिलसिले की कड़ी है। मैंने गांव की तमाम औरतों की कलाइयों का मुआयना किया है। इस हवाले से तुम्हें बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी कलाइयों पर जख्मों के निशानात नहीं पाए गए। तुम मेरी तरफ से क्लियर हो। मुझे तो चूड़ियाँ पहने एक ज़माना हो गया है। वो कमज़ोर मगर बेपरवाह लहजे में बोली, आप बताइए किसी गांव की औरत की कलाइयों पर आपको जख्मों के निशान मिले हैं? कहीं भी नहीं ना। तेज़ बुखार के बायस नूरी की जो हालत हो रही थी, इसमें सवाल जवाब करते हुए मुझे एक हद तक शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। मैंने उसकी कलाइयों की चेकिंग के बाद ये फैसला कर लिया था कि मैं उसके घर से निकल जाऊंगा, लेकिन उसके आखिरी जुमले ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है नूरी, मुझे किसी भी औरत की कलाइयों पर ताज़ा जख्मों के निशान नहीं मिले, लेकिन तुमने इतने वसूख के साथ कैसे कहा है? मेरे दुरुस्त अंदाजे का एक सबब है थानेदार साहब। वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोली। मैंने पूछा, कौन सा सबब? अगर पिछली रात वाकई डेरे पर चौधरी रुस्तम के साथ कोई औरत मौजूद थी और उसकी चूड़ियाँ भी टूटी थीं, तो फिर मेरे ख्याल में उस औरत का ताल्लुक फरीदपुर से नहीं हो सकता। मैंने अब तक इस मामले की जितनी तहकीक की थी, इससे मैं इसी नतीजे पर पहुंचा था। गोया नूरी मेरे अंदाजे की तस्दीक कर रही थी, मगर कैसे? मैं उससे पूछे बिना ना रह सका। नूरी, तुम्हारे ख्याल में इस औरत का ताल्लुक किसी और इलाके से? जी मेरा यही ख्याल है। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोली। इस ख्याल की कोई माकूल वजह तो होगी? जी। उसने एक बार फिर अपने सर को असबाती जनबिश दी और बोली, मैंने कल दिन में दो अजनबी औरतों को कादू से बातें करते देखा था। नूरी की बात सुनकर मेरे जहन को एक झटका सा लगा। मैंने इस्तरारी लहजे में इस्तफसार किया, तुमने उन दो औरतों को कहाँ देखा था? डेरे के नज़दीकी नहर के किनारे, उसने जवाब दिया। ओह। मैंने खोजती हुई नज़र से नूरी को देखा और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उन लोगों के बीच किस नौयत की बातचीत हो रही थी? नहीं जनाब, मैं इतने फासले पर थी कि उनकी बातें नहीं सुन सकी। वो माजरत ख्वाना अंदाज में बोली, वो दोनों औरतें मेरे लिए अजनबी थीं। उनका ताल्लुक फरीदपुर से नहीं था और उन पर एक निगाह डालकर आगे बढ़ गई थी। नूरी के इंकशाफ ने मेरे मन में खुलबली मचा दी थी। उसके फराहम करदा मालूमात मेरी नज़र में गिराए कदर अहमियत की हामिल थी। मैंने बादस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए माजरत ख्वाना अंदाज में कहा, नूरी मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि तुम बुखार में फूंक रही हो और मैं तुमसे सवाल पर सवाल किए जा रहा हूँ। तो मेरी मजबूरी को समझ सकती हो कि कोई चोरी डकैती या राहज़नी का मामूली सा वाक़या नहीं। मैं इस वक्त दोहरे कत्ल के एक संगीन सानहे की तफ्तीश कर रहा हूँ। तुम्हारा ताउन मुझे कादू और रुस्तम के कत्ल का मामला हल करने में मदद दे सकता है। मैं आपकी जिम्मेदारी को समझ रही हूँ थानेदार साहब। वो गहरी संजीदगी से बोली, पूछिए आपको क्या पूछना है? ये तो तय हो गया है कि कल तुमने जिन दो औरतों को कादू के साथ देखा था वो फरीदपुर की वैसनिक नहीं है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, बस तुम मुझे उन औरतों के हुलियों के बारे में तफसील से बता दो ताकि उन्हें तलाश करने में मुझे आसानी हो जाए। तुमने उन लोगों की बातचीत तो नहीं सुनी, मगर उन औरतों की शक्लें तो गौर से देखी होंगी। जी देखी थी, और चूंकि वो दोनों मेरे लिए अजनबी थी इसलिए कुछ ज़्यादा ही गौर से देखी थी। नूरी ने जवाब दिया और बताने लगी। उनमें से एक औरत अधेड़ उम्र थी और उसकी रंगत गंदुमी थी, जबकि दूसरी एक खूबसूरत गोरी चिट्टी जवान लड़की थी। लड़की का कद मुनासिब से निकलता हुआ था, इसे दराज कामत कहा जा सकता है, और वह दुबली पतली थी, मगर उसकी साथ ही अधेड़ उम्र औरत पुस्त कामत और हद से ज़्यादा मोटी थी। उसकी लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वो एक बड़े साइज़ का फुटबॉल नज़र आती थी। मैं उससे ज़्यादा तफसील आपको नहीं बता सकती। उसके बारे में मेरे जहन में जो कुछ था मैंने आपको बता दिया है। ये भी काफ़ी है नूरी, मैंने तशक्कुर आमेज़ अंदाज में कहा। तुमने इन औरतों के हुलियों और कदो-कामत को बड़ी वजाहत के साथ मेरे जहन में नक्श कर दिया है। मैं सरकारी आर्टिस्ट से उनके खाके बनवाकर उन्हें तलाश करने की कोशिश करूँगा। तुमसे बस मेरा आखिरी सवाल है। नमाती तौक़ुफ़ करके मैंने एक इत्मीनान भरी सांस ली, फिर उससे पूछा, नूरी
उन अजनबी औरतों ने किस किस्म के लिबास पहन रखे थे। गोरी चिट्टी दराज कद लड़की ने गरम फूलदार कमीज के साथ काली शलवार पहन रखी थी, नूरी ने बताया। अलावा अजी उसने काले ही रंग की गरम शॉल भी ओढ़ रखी थी, जबकि उसकी साथी अधेड़ उम्र औरत ने गहरे भूरे रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। उस मोटी औरत ने लिबास के ऊपर नीले रंग का ऊनी स्वेटर भी पहना हुआ था, उसके सर पर सफ़ेद दुपट्टा था। बस ठीक है, मैं उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारी बताई हुई तफसील से काम चल जाएगा, मैंने कहा। नूरी, पुलिस से इस ताउन के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक जल्द अज जल्द तुम्हें इस बुखार से निजात दिलाए। आमीन, वो धीरे से बोली। मैं उसके घर से निकल आया। फरीदपुर में मेरा काम एक लिहाज से ख़त्म हो गया था। अब मुझे पहली फुर्सत में 2 अजनबी औरतों का सुराग लगाना था। अगर वो दोनों या उनमें से कोई एक भी मेरे हत्थे चढ़ जाती तो मैं बआसानी कादू और चौधरी रुस्तम के कत्ल के राज से पर्दा उठा सकता था। जब मैं थाने सदर पहुंचा तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैं पिछले 18-20 घंटे से मुसलसल मसरूफ़ कर रहा था। ये ठीक है कि इस दौरान में पेट पूजा करने का थोड़ा बहुत आसरा हो गया था, लेकिन आराम करने का ज़रा भी मौका नहीं मिल सका। मैं थक कर चूर हो चुका था, लिहाजा थाने पहुंचते ही ज़रूरी इंतराज के बाद मैंने अपने क्वार्टर का रुख किया। जैसा कि इब्तिदा में मैंने आपको बताया था कि वो मौसम सरमा के दिन थे और दिसंबर का महीना अपना निफ सफ़र तय कर चुका था। मैं दिसंबर की तारीखों के बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। चुनांचे वाक़यात को तरतीब में रखने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरे मुखबर रियासत अली ने 15 दिसंबर को शोका डंगर चोर के बारे में मुझे इत्तला दी थी कि आइंदा रात वो नहर के रास्ते चोरी शुदा मवेशियों की एक कसीर तादाद गुजरावाला की मवेशी मंडी पहुंचाने वाला है। 16 दिसंबर की रात में और हवलदार नबी बख्श नहर के किनारे झाड़ियों के झुंड में मोर्चा संभालकर शोका का इंतजार करने लगे। शोका मारे मसरूका यानी 30 भैंसों और 12 गायों के साथ हमारे हाथ लगा। इलावा से हमने सुस्त रवि से रवा दवा नहर में से कादू की गर्दन टूटी हुई लाश भी निकाली। आइंदा रोज़ यानी 17 दिसंबर को मैं तफ्तीश की गर्ज से फरीदपुर रवाना हुआ और शाम को वापस आ गया। अगली सुबह यानी 18 दिसंबर को मैंने सरकारी फोटोग्राफर और एक आर्टिस्ट को थाने बुला लिया। मस्कुरा आर्टिस्ट पेन वर्क में यदे तोला रखता था। मैं उससे पहले भी कई बार उससे मदद ले चुका था। उसके बनाए हुए खाके असल शख्सियत से बहुत करीब होते थे। इस आर्टिस्ट का नाम नसीर अली था। मैंने नूरी से हासिल होने वाली अजनबी औरतों के हुलियों और कदो कामत की तफसीलात नसीर और आफ्ताब को बताने के बाद कहा, नसीर, तुम इन दोनों औरतों के खाके तैयार करोगे। फिर मैंने अपने रोए सखुन सरकारी फोटोग्राफर की जानिब मोड़ते हुए इजाफा किया, आफ्ताब, तुम नसीर के बनाए हुए तस्वीरें खाकों को दर्जन भर प्रिंट तैयार करोगे। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? वो बाइक जुबान होकर बोले, जी मलिक साहब, हम अच्छी तरह समझ गए आप हमसे क्या चाहते हैं। आज का सूरज गरूब होने से पहले मुझे रिजल्ट चाहिए। मैंने ताकीदी नज़र से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। आप बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, नसीर ने कहा। आफ्ताब बोला, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। मैंने उन्हें रुखसत कर दिया तो एक कांस्टेबल ने मेरे पास आकर बताया, मलिक साहब, शौका आपसे कोई बात करना चाहता है। तुम लोगों ने उन तीनों की खातिर तवाज़ा में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? मैंने मायने ख़ेज़ नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा जिसकी शौका मुझसे शिकायत करना चाहता है। नहीं जनाब, हमने हर तरह से शौका और उसके साथियों का ख्याल रखा हुआ है। वो मेरी बात की तह में उतरते हुए बाँछें फैलाकर बोला, लेकिन लगता है हमारी मेहमान नवाजी उसे पसंद नहीं आ रही। वो आपसे बात करके यहाँ से रुखसत होना चाहता है। यहाँ से रुखसत होकर वो सीधा जेल जाएगा। मैंने हतमी लहजे में कहा, अलबत्ता इससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इसे यहाँ लेकर आओ। 5 मिनट के बाद शोका मेरे सामने हाजिर था। उसकी हालत से जाहिर होता था कि हवालात में बाकायदगी के साथ उसकी खातिर मदारत हो रही थी। मैंने जब उससे पूछा कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता है तो उसने रोती धोती कहानी सुनाकर मुझसे माफ़ी की दरख्वास्त की। थानेदार साहब, मैं वादा करता हूँ कि मवेशियों की चोरी वाला पेशा हमेशा के लिए छोड़ दूँगा और ये तमाम जानवरों को भी उनके मालकान तक पहुँचा दूँगा। बस आप मुझे माफ़ करके यहाँ से जाने दें। ये मज़मूम धंधा तर्क करने में तुम किसी हद तक रासिलखुल नियत हो, ये सिर्फ खुदा जानते हैं कि तुम जानते हो। मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, या फिर मुस्तकबिल करीब में तुम्हारे किरदार को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकेगा और तुम अपनी ज़ुबान से कितने धनी हो। मैं जो कह रहा हूँ वो सच करके दिखाऊंगा। वो बड़े एतमाद से बोला, मगर मैं तुम्हारी बात का यकीन करके तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, आप मुझे छोड़ नहीं सकते तो फिर हवालात में रहते हुए मुझे काम करने दें। वो मिनज़र लहजे में बोला, मैं साबित कर दूंगा कि झूठा नहीं हूँ। मैंने उस नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम हवालात में बैठकर क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने ये 42 डंगर करीब जवार के गाँव देहात से चोरी किए हैं। वो अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए बोला, मैं आपकी कैद में रहकर इन मवेशियों के असल मालकान तक उन्हें पहुंचा सकता हूं। क्या तुम किसी किस्म का जादू जानते हो? मैंने घूरकर उसकी तरफ देखा। मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ऐसी कोई बात नहीं है थानेदार साहब। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं और मेरे ये दोनों साथी इलियास और अफजल अच्छी तरह जानते हैं कि हमने कौन सा डंगर कहाँ से चुराया है और
تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے غصیلے انداز میں کہا کہ میں تمہیں حوالات میں بند رکھ کر تمہارے دونوں ساتھیوں کو چوری کے جانور سمیت یہاں سے جانے دوں؟ یہ لوگ ان مویشیوں کو ان کے مالکان تک پہنچا کر واپس آئیں گے اور مجھے رپورٹ دیں گے کہ تھاندار صاحب ہم نے سب جانوروں کو واپس کر دیے ہیں، اب آپ ہمارے سرغنہ کو چھوڑ دیں تاکہ ہم شریفانہ زندگی کا آغاز کر سکیں۔ تمہارے ذہن میں یہی منصوبہ ہے نا؟ نہیں تھاندار صاحب، وہ نفے میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بات تو سنیے۔ ٹھیک ہے سناؤ، میں نے کرخت لہجے میں کہا اور ٹٹولنے والی نظر سے اسے تکنے لگا۔ آپ میری کسی ایک ساتھی کو اپنے عملے کے کسی ہوشیار بندے کے ساتھ یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا بندہ آپ کے آدمی کی نگرانی میں ایک ایک مویشی کے مالک کو جا کر بتائے گا کہ اس کا جانور تھانے میں ہے، وہ جا کر وہاں سے وصول کر لے۔ اس طرح ہر شخص یہاں آ کر اپنا جانور لے جائے گا، یعنی تمام مویشی اپنے اصل مالک تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد تو میں آپ سے اپنے خطا بھی معاف کروانے کا حق رکھتا ہوں نا تھاندار صاحب؟ اس کی پیشکش سے نیک نیتی کی بو آتی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، شوکا، آج تو میں کسی اور معاملے میں الجھا ہوا ہوں اور یہ دن بے حد مصروف گزرے گا۔ تمہاری تجویز میں دم ہے، میں کل اس سلسلے میں تم سے بات کروں گا۔ وہ حد سے زیادہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے اسے واپس حوالات میں بھیج دیا اور حوالدار نبی بخش کو اپنے پاس بلا کر ہدایت کر دی کہ شوکا اور اس کے دونوں ساتھیوں کو دال روٹی پر ٹرخائیں۔ اس سے زیادہ خاطرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا، میں نے شوکا سے اپنا قرض ماہ سود وصول کر لیا ہے۔ تم کون سے قرض کی بات کر رہے ہو نبی بخش؟ میں نے چونک کر حوالدار کی طرف دیکھا، کیا تم نے پہلے سے اسے کوئی رقم دے رکھی ہے؟ نہیں ملک صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ذو معنی انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، یہ رقم کا نہیں کوئی دوسرا حساب کتاب ہے۔ اس کم وقت کے انتظار میں اس برفیلی رات پر میرا ایک ایک جوڑ کڑک رہا تھا۔ میں نے شوکا کے ایک ایک جوڑ کو اپنے ہاتھ پاؤں کی طبع آزمائی کر کے دل کی بھڑاس نکال لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کادو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اسپتال سے وہاں پہنچے گی تو میں اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے تمہارے حوالے کر دوں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس رات کادو کی لاش کو نہر سے نکالتے وقت بھی تمہیں بے پناہ سردی لگی تھی اور تمہارا آدھے سے زیادہ لباس بھی بھیگ گیا تھا۔ کادو کی لاش سے حساب چکتا کرنے کے لیے بھی تمہارے من میں بہت سارے ارمان مچل رہے ہوں گے، ہے نا؟ میری اس گہری چوٹ پر وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ دوپہر کے بعد بھولا پہلوان مجھ سے ملنے تھانے چلا آیا۔ اس کا اصل نام صدیق تھا، مگر وہ بھولا پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ کچھ لوگ اسے کالا بھولا یا کالا پہلوان بھی کہتے تھے، اور اس سے ملاقات کے بعد مجھے اس ٹائٹل کا سبب بھی معلوم ہو گیا۔ وہ ایک صحت مند گبرو جوان تھا، جیسا کہ عموماً شہ زور ہوا کرتے ہیں، مگر اس کی رنگت سیاہ تھی۔ بھولا بہت ہی سادہ مزاج انسان تھا۔ چودھری سکندر نے اس کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ منوعن درست تھا۔ میں لگ بھگ آدھے گھنٹے تک گھما پھرا کر بھولا سے مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا۔ اس دوران میں فن پہلوانی اور مختلف داؤ پیچ کی زیر بحث آئے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ بھولا کسی بھی طور پر کادو کے قتل میں ملوث نہیں اور نہ ہی رستم کی موت میں اس کا ہاتھ ہے، تو میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم اس پر نفسیاتی دباؤ رکھنے کی غرض سے میں نے کہا، بھولا، میں اس وقت تو تمہیں جانے دے رہا ہوں، لیکن جب بھی بلاؤں تمہیں تھانے آنا ہوگا اور اس دوران میں تم تھانے میں پیشگی اطلاع دیے بغیر فرید پور سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے۔ ٹھیک ہے تھاندار صاحب، وہ اپنے گردن کو فرما بردارانہ جنوش دیتے ہوئے بولا، آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ کادو کی لاش تو نہر کے پانی میں بہتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے تیکھے انداز میں کہا، اس کی گردن پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات دھل دھلا گئے تھے، لیکن جو رینچ پانا ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری گیا ہوا ہے اس کے دستے پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھاندار، میں سمجھ رہا ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ مجھے یقین ہے کہ اس رینچ کے دستے پر آپ کو میری انگلیوں کے نشانات نہیں ملیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پھنسو۔ تم ایک اچھے انسان ہو اور اس سے بڑھ کر کہ تم فرید پور کی آبرو ہو، وہاں کے ویسنکوں کو تم پر بڑا مان ہے۔ آپ فکر نہ کریں تھاندار صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا، میں فرید پور کی آبرو کو کبھی کوئی حرف نہیں آنے دوں گا اور وہاں کے ویسنکوں کا مان بھی سدا قائم و دائم رہے گا۔ شاباش۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے امید ہے کہ تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا ہی کر کے بھی دکھاؤ گے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گیا۔ انگلیوں کے نشانات والی بات میں نے اس پر دباؤ رکھنے کے لیے کہی تھی، ورنہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا۔ بعض اوقات حالات کے تقاضوں کے مطابق معاملات کو نمٹانے کے لیے ہمیں تھوڑی بہت غلط بیانی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ سے پہر میں دونوں پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں اسپتال سے تھانے پہنچا دی گئیں۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ نے میری تمام تر اندازوں کی تصدیق کر دی تھی۔ قاتل عرف کادو کی موت گردن کا منکر ٹوٹنے سے ہی واقع ہوئی تھی اور اس کی فوری موت کا وقت 16 دسمبر کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ دوسرے مقتول یعنی چودھری رستم کی موت کا بھی یہی وقت بتایا گیا تھا، یعنی ان دونوں مالک اور ملازم کو یکے بعد دیگرے ہلاک کیا گیا تھا۔
یہ بتانا مشکل تھا کہ ان میں سے پہلے کس کی موت واقع ہوئی تھی اور کس کی بعد میں۔ بہرحال ان دونوں کو وقوع کے رات 10-12 بجے کے قریب موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے نہر کے پانی کی رفتار کے حساب سے اندازہ لگایا تھا کہ کادو کو لگ بھگ رات 10:30 بجے ہلاک کیا گیا ہوگا، اور اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ دونوں 10 اور 11 بجے کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق باوقت رخصت رستم شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اس کے معدے میں سے ماں نوشی کے بڑے واضح ثبوت ملے تھے۔ نشے ہی کی حالت میں عقب پر اس کی کھوپڑی پر بھاری آہنی رینج پانی سے وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ آلے قتل یعنی رینج کے سر پر جو خون لگا ملا تھا وہ رستم کے خون سے میچ کر گیا تھا، اور اسے خون کے اندر چپکے ہوئے بالوں کو جب رستم کے بالوں سے موازنہ کیا گیا تو یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ وہ رستم ہی کے بال تھے۔ میں نے ضروری قانونی کارروائی کے بعد دونوں مقتولین کی لاشوں کو راشد مہناز اور اپنے عملے کے ایک شخص کی نگرانی میں شام سے پہلے موضع فرید پور روانہ کر دیا۔ راشد اور مہناز آج دوپہر کے بعد ایک تانگے پر سوار ہو کر تھانے آئے تھے۔ ان کی آمد کا مقصد لاشوں کی وصولی ہی تھا۔ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ نے اگرچہ میرے اندازوں کی تصدیق کر دی تھی، تاہم تفتیش کی گاڑی بیابان علاقے میں ایک ویران اسٹیشن پر پہنچ کر رک گئی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس گاڑی کو آگے کس سمت لے جاؤں۔ میں اس تفتیشی گاڑی کا ڈرائیور تھا، اس لیے تمام تر سوچ و بچار بھی مجھے ہی کرنا تھی۔ نوری ماسی کی فراہم کردہ معلومات میں میرے لیے روشنی کی ایک کرن موجود تھی۔ اگرچہ وہ تیز بخار کے لپٹ میں تھی، تاہم اس سے ہونے والی ملاقات لا حاصل نہیں رہی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ابھی تک میری تفتیش کا حاصل یہ ملاقات ہی تھی تو بیجا نہ ہوگا۔ نوری ماسی نے 16 دسمبر کی دوپہر میں دو عورتیں کو نہر کے کنارے ڈیرے کے نزدیک کادو کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، اور اسی رات یہ دونوں افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور چودھری رستم کے کمرے میں بھی کسی عورت کی موجودگی کے ناقابل تردید ثبوت ملے تھے۔ یہ بھی ثابت شدہ تھا کہ وقوع کی رات رستم کے کمرے میں پائی جانے والی عورت کا تعلق فرید پور سے نہیں تھا۔ گھوم پھر کر معاملہ انہی دو اجنبی عورتوں پر آ کر ٹھہر جاتا تھا، جن میں سے ایک پست قامت اور حد سے زیادہ موٹی تھی، جبکہ دوسری دراز قد، گوری چٹی اور دبلی پتلی تھی۔ میں نے اپنے لوگوں سے ان دونوں عورتوں کے درجن بھر خاکے تیار کروا لیے تھے، جن کی مدد سے میں ان دونوں کو تلاش کرنا تھا۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے ہتھے چڑھ جاتی تو دوہرے قتل کی اس واردات کا معمہ حل ہو سکتا تھا۔ یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ ان کا فرید پور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے وہاں پہنچی تھیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر وہ مقتول کادو کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو کیا کادو انہیں جانتا تھا؟ اس سوال کا سب سے مناسب جواب تو کادو ہی دے سکتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے سوال و جواب کی پہنچ سے نکل چکا تھا، لہٰذا یہ جواب بھی مجھے ہی تلاش کرنا تھا۔ آئندہ روز کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ 19 دسمبر کی صبح میں نے مذکورہ دونوں نامعلوم عورتوں کے خاکوں کو اپنے بندوں کو حوالے کر کے انہیں تلاش کی مہم میں روانہ کر دیا۔ اگر وہ فرید پور کے رہنے والی نہیں تھیں تو ایک امکان یہ بھی تھا کہ ارد گرد کے کسی گاؤں سے ان کا تعلق ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور ضلع سے آئی ہوں۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے اہلکاروں کو خصوصی ہدایت دی تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور تانگا اسٹینڈ وغیرہ کی خاص طور پر چیک کریں۔ اگر ان کا تعلق کسی اور علاقے یا کسی اور شہر سے تھا تو ان مقامات پر لازمی کسی نے انہیں دیکھا ہوگا۔ میرے اختیار کی ہوئی حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ دوپہر سے پہلے ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، ان عورتوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ مذکورہ کانسٹیبل کا نام رفیق تھا، اور وہ ایسے اطمینان بھرے انداز میں یہ اطلاع دے رہا تھا کہ جیسے وہ نامعلوم عورتوں کو کہیں سے پکڑ کر لے آیا ہو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، کہاں ہے وہ دونوں؟ جج جی، وہ میرے سوال پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ رفیق، میں تم سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جن کا مسئلہ تم نے حل کر لیا ہے۔ میں نے تیز نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، میرا مطلب تھا کہ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، انہیں ریلوے اسٹیشن پر دیکھا گیا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تفصیلات کیا ہیں؟ ملک صاحب، اسٹیشن ماسٹر نے انہیں 14 دسمبر کو وہاں پلیٹ فارم پر دیکھا تھا، رفیق نے بتایا۔ پھر میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر کچھ بھی نہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ پھر وہ دونوں کہیں چلی گئی تھی، کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں گئیں۔ مجھے اندازہ لگانے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ کانسٹیبل رفیق سے مزید سوال و جوابات وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا، لہٰذا میں فی الفور ریلوے اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے تھانے سے ریلوے اسٹیشن کم و بیش آدھی میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ مجھے وہاں پہنچنے میں چند منٹ لگے ہوں گے۔ میں چاہتا تو کسی سینئر اہلکار کو اسٹیشن ماسٹر سے معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج سکتا تھا، لیکن میں نے خود ہی یہ مہم سر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پچھلے 2 روز سے اس کیس نے میرے ذہن کو بہت منتشر کر رکھا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر بڑے اتفاق سے ملا اور میرے لیے گرما گرم چائے کا آرڈر دے دیا۔ اس وقت کسی ٹرین کی آمد کا وقت نہیں تھا، لہٰذا اس کے پاس بات چیت کے لیے مہلت تھی۔ ہم بآسانی اس سنگین معاملے پر گفتگو کر سکتے تھے۔ جب میں نے اسٹیشن ماسٹر کو اپنے غرض و غایت کے بارے میں بتایا تو وہ خوش اخلاقی سے بولا، ملک صاحب،
میں ان دونوں کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، تاہم مجھے جتنا معلوم ہے اگر وہ آپ کے کام آ سکتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے اتنا بتا دوں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے الجھن نظر سے اسٹیشن ماسٹر کی طرف دیکھا۔ اگر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر وہ ایک ساتھ کیوں تھی؟ وہ لڑکی غلطی سے اسٹیشن پر اتر گئی تھی، اسٹیشن ماسٹر نے بتایا۔ وہ پریشان تھی، اسی دوران میں یہ موٹی عورت اسے مل گئی۔ اس نے اسکیچ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ دونوں پلیٹ فارم کے ایک بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں، اس کے بعد اٹھ کر کہیں چلی گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موٹی عورت اس لڑکی کو کوئی جاننے والی ہو، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اس نے گول مول بات کی۔ اگرچہ اسٹیشن ماسٹر نے میری بات کی تائید کی تھی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے اس سے میرا کام نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے ان دونوں نامعلوم عورتوں کا سراغ لگانا تھا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب مجھے ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا، آپ نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی غلطی سے اسٹیشن پر اتر گئی تھی، کیا آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہی تھی اور اسے کہاں جانا تھا؟ جس گاڑی میں سے وہ اتری تھی وہ راولپنڈی سے لاہور کی سمت جا رہی تھی، اسٹیشن ماسٹر وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میری ڈائریکٹ اس لڑکی سے بات نہیں ہوئی، اس لیے اس کے سفر کے آغاز اور اس کی منزل کے بارے میں آپ کو ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ مجھے اپنے عملے کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکی غلطی سے اس اسٹیشن پر اتر گئی تھی، پھر اسے وہ موٹی عورت مل گئی۔ دونوں تھوڑی دیر تک پلیٹ فارم کے بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، پھر یہاں سے رخصت ہو گئیں۔ اس بات کا تو آپ کو یقین ہے نا کہ وہ آپ کے اسٹیشن سے کسی ٹرین پر سوار نہیں ہوئی تھی؟ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر پوچھ لیا۔ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد اسٹیشن کی بلڈنگ سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے تعاون اور چائے کا شکریہ ادا کیا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اسٹیشن ماسٹر سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں نے پلیٹ فارم پر گھوم پھر کر اپنے طور پر بعض لوگوں سے پوچھ تاچھ کی، جو کہ کافی مفید ثابت ہوئی۔ ایک کلی نے مجھے بتایا کہ وہ اسٹیشن سے نکل کر دونوں عورتیں تانگا اسٹینڈ کی جانب گئی تھیں۔ یہ جن دنوں کا واقعہ، اس زمانے میں آج کی طرح تانگا اسٹیٹ پر تانگوں کا میلہ نہیں لگا رہتا تھا۔ تانگوں کی محدود تعداد ہوا کرتی تھی، جو اپنے کام کے لحاظ سے مسافروں کو ریلوے اسٹیشن، لاری اڈہ اور شہر کے دوسرے حصوں سے گرد و نواح کے گاؤں دیہات تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس وقت اسٹینڈ پر صرف ایک تانگا سواریوں کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر میں نے تانگا اسٹینڈ کا رخ کیا۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا۔ تانگا اسٹینڈ پر چائے، سگریٹ کے کھوکے والے اور پھل فروش مجھے دیکھتے ہی الرٹ ہو گئے۔ میں نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے خالی تانگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کوچوان نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو باادب، با ملاحظہ ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے نزدیک پہنچا تو بڑے احترام سے بولا، سرکار حکم کریں، آپ کو کہاں لے چلوں؟ میں نے اپنا گھوڑا اسٹیشن کی عمارت کی ایک دیوار کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور چہل قدمی کرتے ہوئے تانگا اسٹینڈ کی سمت بڑھا تھا۔ میں نے کوچوان کی پیشکش کے جواب میں کہا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ کرامت علی، اس نے بتایا۔ کرامت کی عمر 60 کے قریب تھی۔ میں نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر کہا، چاچا فی الحال تو میں تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں، اگر میرا مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر کہیں جانے کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ جی ضرور، میں حاضر ہوں، وہ فوراً برداری سے بولا۔ آپ پوچھئے جی۔ میں اسے اس کے تانگے میں لے کر بیٹھ گیا اور ان نامعلوم عورتوں کے خاکے کا پرنٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، مجھے ان دونوں کی تلاش ہے۔ یہ آج سے 4-5 دن پہلے لگ بھگ اسی وقت اسٹیشن سے نکل کر تانگا اسٹینڈ کی طرف آئی تھی، پھر تمہارے تانگے پر سوار ہو کر کہیں چلی گئی تھی۔ بتاؤ تم نے انہیں کہاں پہنچایا تھا؟ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی نگاہ کرامت علی کے چہرے پر گاڑ دی۔ آخری جملہ میں نے کوچوان کو چکر دینے کے لیے بولا تھا، تاکہ اگر وہ انہیں جانتا ہو یا 14 دسمبر کو اگر اس نے ان دونوں کو کہیں دیکھا ہو تو اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکوں۔ آپ کی بات ایک حد تک درست ہے تھانے دار صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں نے 14 تاریخ کو لگ بھگ اسی وقت انہیں یہاں دیکھا تھا، لیکن یہ میرے تانگے میں نہیں بیٹھی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، تو پھر کس کے تانگے پر سوار ہوئی تھی؟ غلام عباس کے تانگے پر، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ انہیں چھچر والی جانا تھا اور میں اس طرف جاتا نہیں۔ میں نے اپنا روڈ جی ٹی روڈ کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام عباس چھچر والی کے روڈ پر چلتا ہے؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ غلام عباس چھچر والی کا ہی رہنے والا ہے، اس لیے وہ چھچر والی اور گجرانوالہ شہر کے بیچ تانگا چلاتا ہے۔ کرامت علی نے مجھے گرا قدر معلومات بہم پہنچائی تھی۔ ان دونوں نامعلوم عورتوں کے حوالے سے اب میں بالکل ہی لا علم نہیں رہا تھا۔ میں نے کوچوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس وقت غلام عباس کہاں ملے گا؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تانگا لے کر اسٹینڈ سے نکلا ہے، کرامت علی نے بتایا۔ اس وقت وہ چھچر والی کے آدھے راستے میں ہوگا۔ کیا غلام عباس کوئی اور پھیرا اٹھانے ریلوے اسٹیشن کی طرف آئے گا؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میں یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ ہو سکتا ہے آ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تانگا کھڑا کر کے اپنے گھر چلا جائے۔
करामत अली की बात में वजन था। मैंने कहा, ठीक है चाचा, आज का दिन तुम सरकार की ड्यूटी पर हो, तुम्हें अभी मेरे साथ छज्जरवाली जाना होगा। पहले हम यहाँ से थाने चलेंगे, वहाँ से मैं किसी को अपने साथ लूंगा, फिर हम छज्जरवाली की जानिब रवाना हो जाएंगे। करामत अली के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। चंद लम्हात की परेशानी में रहने के बाद वो रजामंदाना लहजे में बोला, ठीक है सरकार, जो आपका हुक्म। मैंने उसके इत्मीनान की गर्ज से वजाहत कर दी, चाचा ये ना समझना कि कार्य सरकार में तुम्हारी किसी किस्म का माली नुकसान हो जाएगा। मैं इन पुलिस वालों में से नहीं हूँ जो शहरियों की जेब से कुछ ना कुछ निकलवाने के चक्कर में रहते हैं। तुम एक दिन में जितना कमा लेते हो, मैं वो रकम तुम्हें अपनी जेब पे खास से दूंगा। तुम हमें छज्जरवाली गुलाम अब्बास के पास पहुंचाओगे, और अगर वो हमें रास्ते में कहीं मिल गया तो उसी वक्त तुम्हारी छुट्टी। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ गया, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। थोड़ी देर में हम थाने पहुंच गए। करामत अली ने सफ़र अपने तांगे में और मैंने अपने घोड़े पर तय किया था। करामत अली को मैंने इसलिए अपने साथ जोड़ लिया था कि यह मौका का गवाह था। इसने मेरी मतलूबा औरतों को गुलाम अब्बास के तांगे में बैठकर छज्जरवाली जाते देखा था, लिहाजा गुलाम अब्बास करामत अली की गवाही को रद्द नहीं कर सकता था। बड़ी मुश्किल से इस केस का एक सिरा मेरे हाथ में लगा था। मैं इस मौके को हर सूरत में केश करना चाहता था, वरना छज्जरवाली गांव मेरे लिए नया नहीं था और न ही मैं वहां तक रसाई के रास्ते से ना आशना था। मैंने थाने से एएसआई याकूब को साथ लिया और हम दोनों करामत अली के तांगे में बैठकर छज्जरवाली की जानिब रवाना हो गए। छज्जरवाली भी एक छोटा सा गांव था, ताहम उसका साइज फरीदपुर से ज़्यादा था। ये रुपये और आबादी के लिहाज से निस्बतन एक दरमियाने दर्जे का गाँव था। कोचवान गुलाम अब्बास का घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। करामत अली का अंदाज़ा दुरुस्त था। गुलाम अब्बास ने गांव पहुंचकर अपना तांगा खड़ा कर दिया था। अब इसका मजीद धंधा करने का इरादा नहीं था। एक तो पुलिस का नाम ही काफ़ी होता है, ऊपर से पुलिस वाले अगर यूनिफॉर्म में हो तो हर बंदा दर खुद ब खुद खुलने लगता है। गुलाम अब्बास ने हमें ले जाकर यास्मीन आंटी के घर के सामने खड़ा कर दिया। जी, यास्मीन उसी लईम शईम औरत का नाम था जिसे गुलाम अब्बास ने 14 दिसंबर की दोपहर रेलवे स्टेशन से छज्जरवाली पहुंचाया था। गुलाम अब्बास के मुताबिक यास्मीन आंटी का ताल्लुक छज्जरवाली ही से था। तहम उस रोज़ यास्मीन के साथ जो गोरी चिट्टी जवान लड़की थी वो गुलाम अब्बास के लिए नई थी। गुलाम अब्बास ने मुझे ये भी बताया कि यास्मीन एक फैशनी औरत है और ख़ुद को आंटी कहलाती है। अगर इसे कोई चाची या मासी कह दे तो वो बुरा मान जाती है। मैंने गुलाम अब्बास का शुक्रिया अदा करके उसे फारिग कर दिया और ख़ुद यास्मीन आंटी के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। घर के सामने वाले हिस्से में मुझे एक दुकान नजर आई जहाँ पर एक गंजा शख्स बैठा फल और सब्जी बेच रहा था। घर का दरवाज़ा इस दुकान के साथ ही था। हमें अपनी तरफ बढ़ते देखकर गंजा शख्स अपनी दुकान से बाहर निकल आया था। मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो उसने अपनी पेशानी पर हाथ रखकर मुझे सलाम किया और मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद घर के दरवाजे के सिमत उंगली से इशारा करते हुए पूछा, क्या आंटी यास्मीन इधर ही रहती हैं? जी जी, वो बड़ी सरस से सर को असबाती जनबिश देते हुए बोला, मेरा नाम सरदार हुसैन है, मैं यास्मीन का घर वाला हूँ। वो जितनी मस्कीनियत से अपना तारुफ करा रहा था, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपनी बीवी के दबाव में है। मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा, सरदार, तुम आंटी यास्मीन के घर वाले हो तो उसे घर से बाहर लेकर आओ या हमें अपने घर के अंदर कहीं बिठाओ। मुझे तुम्हारी बीवी से बहुत ज़रूरी बातें करना है। सब खैरियत तो है ना जी? वो तशवीशनाक अंदाज में हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला, गड़बड़ वाली कोई बात तो नहीं? ओए नामाकुला, एएसआई ने तेज़ नज़र से उसे घूरा, पुलिस ख्वाह किसी के दरवाजे पर नहीं आती। तुम अपनी बीवी को बाहर निकालते हो या हम दरवाज़ा तोड़कर तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो जाएं? लगता है इस कमीने ने फिर कोई गड़बड़ कर दी है। सरदार हुसैन ने बेहद परेशानी के आलम में खुद कलामी की। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने सरदार की आंखों में देखते हुए कहा। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और ये मेरे साथ एएसआई याकूब है। मैंने अपने नायब की जानिब इशारा किया और पूछा, क्या तुम्हारी बीवी पहले भी गड़बड़ करती रही है जो तुम इस कदर घबराए हुए नज़र आ रहे हो? बस जी, वो ऐसी ही है, उसने गोलमोल जवाब दिया। उसी लम्हे घर के अंदर से एक करख्त नक्सवानी आवाज़ बुलंद हुई। इस आवाज़ ने सरदार हुसैन को सहमा दिया। वो सरदार ही से इस्तफसार कर रही थी, ए सरदार, तू किससे बातें कर रहा है? क्या दुकानदारी में तुम्हारा दिल नहीं लगता? क्या तुम्हारी बीवी है ना? मैंने सवाली नज़र से सरदार हुसैन की तरफ देखा। आंटी यास्मीन? जी हाँ, वही है, वो जल्दी से बोला। फिर कुदरत जरातमंदी का मुजाहरा करते हुए उसने उन अल्फाज में इजाफा कर दिया, खुद ही बाहर आकर देख लो कि तुमसे कौन मिलने आया है। मुझसे मिलने? आंटी यास्मीन के आवाज़ में हैरत शामिल हो गई कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ये समझने में देर न लगी कि आंटी यास्मीन एक गुस्सावर और बदतमीज़ औरत थी जिसकी नज़र में शौहर की हैसियत किसी ज़र खरीद गुलाम से ज़्यादा नहीं थी। कबल उसके कि सरदार हुसैन उसके इस्तफसार के जवाब में घगया कर कुछ कहता, एक झटके से घर का दरवाज़ा खुल गया। मैंने खुले हुए दरवाजे में जिस औरत को खड़े देखा उसकी उम्र 45 के करीब रही होगी। वो गंदुम रंगत की मालिक एक पुस्त कामत और मोटी औरत थी। वो नसीर अली के बनाए हुए खाके पर पूरी उतरती थी। यही मेरी मतलूबा औरत थी। यास्मीन ने भड़कदार लिबास पहन रखा था, उसके बाल सलीके से गुंदे हुए थे
और आंखों में काजल की धार भी काफ़ी नुमाया थी। वो अपने चेहरे मेहरे से एक करख्त और खरनाट औरत दिखाई देती थी, पलक झपकते ही गुस्से में आ जाने वाली। लेकिन पुलिस पर नज़र पड़ते वो यकायक हवास बाख्ता हो गई। यास्मीन ने मेकान की अंदाज में दरवाजे को बंद करना चाहा, लेकिन मैं गाफिल नहीं था। मैंने दरवाजे के दोनों पट के दरमियान अपना पाँव फंसाकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। उसके बावजूद भी वो जोर लगाकर मेरे बूट को कुचलने की सही में मसरूफ़ रही। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया आंटी यास्मीन। अब तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि मैं जो पूछूं उसका ठीक ठाक जवाब दो, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले जाऊंगा। फिर वहाँ हवालात में बैठकर तुम आईनी जेवर के साथ जोर आजमाई करती रहना। मेरी धमकी काफ़ी कारगर साबित हुई। दरवाजे पर उसने तबय आजमाई को मौकूफ़ कर दिया। मेरी लहजे की खतरनाकी ने उसे बार बार करा दिया था कि यहाँ धौंस धांधली के मसाले से उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो खासी सर्दो गर्म चेशीदा औरत दिखाई देती थी। बैक फुट पर जाते हुए उसने मुझसे पूछा, आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? सिलसिला भी बता दूंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में कहा। अगर दरवाजे पर खड़े खड़े मैंने तुमसे पूछताछ शुरू कर दी तो पूरे छज्जर वाले को तुम्हारे करतूतों का पता चल जाएगा। क्या तुम्हारे घर के अंदर बैठने की कोई जगह नहीं है? आखिर मेरा कसूर क्या है? उसने नीम एहतजाजी लहजे में पूछा और घर का दरवाज़ा खोल दिया। मैं सरदार हुसैन की रहनुमाई में ASI के हमरा घर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। हम सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठने लगे तो यास्मीन आंटी ने अपने शोर से कहा, तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, तुम बाहर जाकर दुकान को संभालो। सरदार हुसैन इतना ज़्यादा बीवी के रौब में था कि उसके हुक्म की बजा आवरी के लिए फ़ौरन मुड़ गया। मैंने आवाज़ देकर उसे रोक लिया, सरदार तुम भी इधर ही बैठो, मुझे तुमसे भी बहुत कुछ पूछना है। उसने रुककर सवाली नज़र से अपनी बीवी की तरफ देखा जैसे इजाज़त तलब कर रहा हो। मैंने डांट आमिज अंदाज में कहा, इधर क्या देख रहे हो? इस इलाके का थानेदार मैं हूँ या तुम्हारी बीवी? थानेदार तो इस इलाके के आप ही हैं माई बाप, वो मिन्नत ज़ेर लहजे में बोला। फिर यास्मीन की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, और घर की थानेदारनी ये है। फिलहाल तुम घर की थानेदारनी को भूल जाओ, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी इलाके के थानेदार के सामने लाइन हाजिर है। मैंने उसके कानों के कीड़े झाड़ते हुए कहा, इधर वही होगा जो मैं चाहूँगा। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए मेरे इशारे पर अपनी बीवी के पहलू में चारपाई पर बैठ गया। उनके सामने दूसरी चारपाई पर मैंने और ASI ने कब्जा जमा लिया। मैंने सरदार और यास्मीन को पहलू ब पहलू इसलिए बिठाया था ताकि अगर यास्मीन सरदार को कोई इशारा करे तो वो मेरी पकड़ में आ जाए। यास्मीन ने एक मरतबा फिर कदरे खफकी आमेज अंदाज में पूछा, ये सब हो क्या रहा है? आखिर मुझसे चाहते क्या हैं? चंद सवालों के सीधे और खरे जवाब। मैंने यास्मीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुमने तामुन किया तो मैं चुपचाप वापस चला जाऊंगा। बासूरत दिगर तुम्हें भी मेरे साथ थाने जाना होगा। मेरे हतमी अंदाजे ने उसे मुश्किल में डाल दिया। चल नमाती तक वो परेशानी का शिकार रही और वो थूक निकलते हुए बोली, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा, वो लड़की कहाँ है? मैंने इस बेसाख्तगी के साथ ये सवाल किया था कि उसे सोचने समझने का मौका ही न मिल सका। गैर इरादी तौर पर उसने उल्टा मुझसे इस्तफसार किया, कौन सी लड़की? मैं उस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ, मैंने अपने लहजे में करख्तगी को बरकरार रखते हुए कहा, जो 4 रोज़ पहले रेलवे स्टेशन से तुम्हारे साथ एक तांगे पर सवार होकर छच्चर वाली पहुंची थी। कुछ याद आया या मैं उस लड़की का फ़ोटो भी दिखाऊं? फ़ोटो? उसने उलझन नज़र से मेरी तरफ देखा। मैंने नसीर अली के तैयार करता स्केच को आंटी यास्मीन के सामने रखा, फिर उस खाके में मौजूद लड़की पर उंगली रखते हुए कहा, ये लड़की। आंटी यास्मीन एक अच्छी अदाकारा भी थी। अपने और इस लड़की के स्केच को देखकर उनके चेहरे पर इत्मीनान भरे तासुरात नमूदार हुए। फिर वो संभलते हुए लहजे में बोली, अच्छा तो आप फरजाना की बात कर रहे हैं। मुझे शक हुआ कि वो मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रही है। मैंने सरदार हुसैन के चेहरे पर निगाह डाली तो वहाँ मुझे परेशानी की परछाई दिखाई दी, जिसका मतलब यही था कि वो अपनी बीवी के जवाब से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा तो इस लड़की का नाम फरजाना है? मैंने यास्मीनी के अंदाज में उसे घिसना शुरू किया और पूछा, तुम्हारा फरजाना के साथ क्या ताल्लुक़ है? थानेदार साहब, फरजाना मेरी भांजी है, बहन खुर्शीद की बेटी। वो मेरी आंखों में देखते हुए खासी मजबूत लहजे में बोली, ये लोग इधर लाला मूसा में रहते हैं। फरजाना मुझसे मिलने आई थी, इसलिए मैं उसे लेने रेलवे स्टेशन गई थी। यास्मीन ने बरमहल जवाब दिया था, लेकिन पिछले 2-3 रोज़ से मैं हालात के जिन घमा घेरियों में उलझा हुआ था, उसकी रोशनी में मैं आंखें बंद करके यास्मीन की बात पर भरोसा नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने तस्दीक तलब अंदाज में सरदार हुसैन की तरफ देखा और पूछा, सरदार तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? कोई 15-20 साल तो हो ही गए होंगे सरकार। वो जज्बुस होते हुए बोला। उसकी समझ में नहीं आया था कि मैं उससे ये सवाल क्यों किया था। यास्मीन आंटी ने एक बार फिर सरदार को वहाँ से हटाने की कोशिश की। इससे पहले कि सरदार मेरी बात का जवाब देता, वो बेसारी से बोली, क्या तुम सारा दिन इधर ही बैठे रहोगे? जाओ बाहर जाकर दुकानदारी को देखो। मुझे समझने में कतई कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि यास्मीन नाश्ता सरदार को वहाँ से भगाना चाहती है, जैसे उसे डर हो कि इसकी कोई बात यास्मीन के बयान की तरदीद कर देगी।
میں نے سردار کو وہیں بیٹھنے رہنے کی تاکید کی اور کہا تم ان 15-20 سال میں کتنی مرتبہ اپنی سالی خورشید کے پاس لالا موسیٰ گئے ہو؟ یہ تو کہیں نہیں جاتا تھانے صاحب، یاسمین جلدی سے بولی، بس ادھر ہی دکانداری میں کھپا رہتا ہے۔ میں نے تو تم سے نہیں سردار سے سوال کیا ہے، میں نے یاسمین کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا، اور جب تک میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں تم اپنی چونچ کو بند ہی رکھو۔ پھر میں دوبارہ اس کے شور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں سردار، یہ خورشید اور فرزانہ کے کردار ابھی تخلیق کیے گئے ہیں یا تم پہلے سے انہیں جانتے ہو؟ یہ تو آپ یاسمین سے پوچھئے۔ وہ بہت الجھے ہوئے لہجے میں بولا، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر بیوی کے سامنے تمہاری زبان نہیں کھل رہی تو اب میں تھانے لے جا کر ہی تم سے بات کروں گا، میں نے سردار سے کہا۔ پھر روئے سخن یاسمین کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، تو کہاں ہے وہ تمہاری بھانجی فرزانہ؟ وہ تو واپس لالا موسیٰ چلی گئی ہے جی، وہ بڑی ہوشیاری سے بولی۔ وہ 100% دو رخ گوئی سے کام لے رہی تھی اور جھوٹے کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، خیر سے اس کی واپسی کب ہوئی ہے؟ وہ آج صبح ہی تو گئی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا، تم غلام عباس کے تانگے میں اپنی بھانجی کو اسٹیشن چھوڑنے گئی تھی نا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ جی بالکل، وہ مکاری سے بولی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ ہم غلام عباس کے تانگے میں گئے تھے؟ غلام عباس نے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے مل کر آیا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اسے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے دل میں چوٹ تھا، اس لیے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اسے اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کا اندیشہ ہو۔ ایسا خدشہ عموماً اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان نے سرین دو رخ گوئی سے کام لیا ہو۔ ان لمحات میں یاسمین کی کچھ ایسی حالت تھی۔ کیا آپ نے واقعی غلام عباس سے ملاقات کی ہے؟ وہ شک زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں نے جلدی سے کہا، کیا مجھے اس کوچوان سے نہیں ملنا چاہیے تھا؟ میں نے ایسا کب کہا تھانے صاحب؟ وہ بات بناتے ہوئے بولی، آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، آپ جس سے بھی ملیں آپ کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ فی الحال تو میں تم سے ملنے آیا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے تمہیں تھانے ہی لے جانا پڑے گا۔ جناب، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے تو رہی ہوں، وہ بیزاری سے بولی۔ آپ خواہ مخواہ ہی مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ او آنٹی، میں خواہ مخواہ کچھ نہیں کرتا ہوں، میں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، میں اتنی دیر سے تمہاری بک بک سن رہا ہوں اور تمہیں جھوٹ پر جھوٹ بولنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تمہارے اندر شرم نام کی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ وہ کمال ڈھٹائی سے بولی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے جی؟ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ اگر وہ عورت ذات نہ ہوتی تو میں لاتوں گھوسوں سے اس کی وہ درگت بناتا کہ سالوں سال تک اسے میرا سلوک یاد رہتا۔ میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، تم نے کوئی ایسا جھوٹ بولا ہو تو میں بتاؤں بھی۔ تم جس لڑکی کو اپنی بھانجی بتا رہی ہو اس کا تو تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ اگر وہ تمہاری بھانجی ہوتی تو تم اسے کادو کے حوالے کبھی نہیں کرتی۔ تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ ادھر فرید پور میں کون سی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ تم جس لڑکی کو بھلا پھسلا کر یہاں لائی تھی اور پھر 2 روز کے بعد اسے کادو کے سپرد کر دیا تھا، وہ تمہاری بھانجی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو کسی کادو کو نہیں جانتی۔ بکواس بند کرو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے گرجدار آواز میں کہا، اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بہت ہی ڈھیٹ مٹی سے بنی ہوئی ہو، لہٰذا تمہارے ساتھ سارے سوال جواب اب تھانے میں ہی ہوں گے۔ وہاں پہنچ کر تمہاری زبان کے تمام قفل خود بخود ہی کھل جائیں گے۔ 1 منٹ میں فیصلہ کر لو کہ شرافت سے میرے ساتھ چلتی ہو یا پورے چھچر والے کے ویسنگوں کے سامنے تمہیں گھسیٹتے ہوئے تھانے لے جاؤں۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ تھانے جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ میں نے اس کے نام نہاد گھر والے کو اس کے گھر ہی میں چھوڑا اور آنٹی یاسمین کو کرامت علی کے تانگے میں بٹھا کر چھچر والی سے تھانے صدر لے آیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو سورج کے غروب ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ میں نے کرامت علی کو اس کی اوسط وہاڑی سے کچھ زیادہ رقم دے کر رخصت کر دیا اور یاسمین کو حوالدار نبی بخش کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ آنٹی یاسمین ہے جس نے وہ لڑکی چودھری رستم کے ڈیرے پر پہنچائی تھی۔ یاسمین بیچاری گونگی ہے لیکن میں اس کی زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ آج کی رات کے لیے میں اسے تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ سنا ہے تمہارے پاس زبان کھلوانے کا کوئی منتر ہے؟ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اپنے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اپنے کوارٹر پر جائیے۔ صبح جب آپ اپنے کمرے میں پہنچیں گے تو آنٹی یاسمین کی زبان کا آپریشن کر کے میں اسے بولنے، خصوصاً سچ بولنے کے قابل بنا چکا ہوں گا۔ میں بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ آنٹی یاسمین نے مجھ سے متعدد جھوٹ بولے تھے۔ جس انسان کسی معاملے میں دو رخ گوئی کا سہارا لیتا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ نفسیات داں کسی جھوٹ کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کی 4 وجوہات بتاتے ہیں اور ان چاروں وجود کا تعلق انسان کے فائدے اور نقصان سے ہے۔ اول، انسان کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دو رخ گوئی سے کام لیتا ہے۔ دوم، وہ کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے غلط بیانی کا سہارا لیتا ہے۔
सोम वो अपनी झूठी शान दिखाने के यानी खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए दो रुख गोई करता है, और चाहरुम वो अपनी किसी कची को छुपाने या किसी जुर्म की पर्दापोशी की गर्ज से झूठ बोलता है। मजे की बात तो यह है कि आंटी यास्मीन के झूठ में ये चारों वजूहात दर्जा बदर्जा मौजूद थीं। अगली सुबह मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो हवलदार नबी बख्श ने मेरे पास आकर खुशखबरी सुना दी। पुरमसरत लहजे में उसने मुझे बताया, मलिक साहब, आंटी के सारे कस्बल मैंने निकाल दिए हैं। वो इतनी तनफन भूल चुकी हैं। मैंने उसकी ज़ुबान से निहायत संगीन इंकशाफात करवा लिए हैं। आप भी इसका बाकायदा बयान रिकॉर्ड कर लें। उस ज़माने में महकमे पुलिस के पास ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की कोई सहूलत मौजूद नहीं होती थी। यहाँ पर बयान रिकॉर्ड करने से मुराद तहरीरी बयान नोट करने के बाद इस पर मुलजिम या मुजरिम के दस्तखत या अंगूठे का निशान लेना है। तुमने उसे जिस्मानी तशद्दुद से नहीं गुजारा? मैंने सवाली नज़र से उसकी तरफ देखा। नहीं मलिक साहब, नबी बख्श ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं ख़वातीन पर तशद्दुद को ठीक नहीं समझता। फिर तुमने आंटी यास्मीन पर ऐसा कौन सा जादू किया है कि वो ज़ुबान खोलने पर मजबूर हो गई? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। मलिक साहब, मैंने आंटी के पानी में पेशाब आवर दवाई मिला दी थी। वो एक आग दबाकर वजाहत करते हुए बोला, और इसके साथ ही मैंने आंटी के बाथरूम जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। रात के खाने के साथ उसने अच्छा खासा पानी पी लिया था, ऊपर से मौसम भी ठंडा ठार है। आंटी से बर्दाश्त नहीं हो सका, और जब उसने महसूस किया कि अगर वो रफ़ाए हाजत के लिए बाथरूम नहीं गई तो उसका मसाना फट जाएगा, तब उसने हथियार फेंक दिया और सच बोलने के लिए तैयार हो गई। बस इतनी सी बात है। तुम्हारी नज़र में इतनी सी बात होगी नबी बख्श? मैंने सताइशी अंदाज में उसकी तरफ देखा। लेकिन मेरी निगाह में तुम एक जल्लाद सिर्फ माहिर नफ्सियात हो। मलिक साहब, मैं आपके अल्फाज को अपनी तारीफ समझूँ या? उसने बात नामुकम्मल छोड़ी और सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगा। अपने बारे में तुम बाद में गौर व फिक्र करते रहना, मैंने ज़रेला मुस्कुराते हुए सरसरी अंदाज में कहा। फिलहाल तुम आंटी यास्मीन को यहाँ लेकर आओ ताकि मैं उसका बयान रिकॉर्ड कर सकूँ। होने गया तो होने आया मलिक साहब, वो बातें फैलाते हुए बोला। फिर खटाक की आवाज़ के साथ मुझे स्लौट मारकर वो कमरे से बाहर निकल गया। ये सच है कि बाज़-औक़ात ख़तरनाक मुजरिमों की ज़ुबान खुलवाने के लिए उन्हें इंसानियत सोच सलूक से भी गुजरना पड़ता है, और कभी कभार बदकिस्मती से कोई बेगुनाह भी इस रगड़े में आ जाता है। बहरहाल ये सब हमारी मजबूरी होती है, आप इसे तफ्तीश का एक हिस्सा समझ लें। ताहम औरतों को जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती और बाज़ औक़ात ज़हनी दबाव में लाकर उनकी ज़ुबान का ताला खुलवाया जाता है, जैसा कि नबी बख्श ने आंटी यास्मीन के साथ किया था। आंटी यास्मीन एक घेरने वाली औरत थी। वो एक गांव से दूसरे गांव में और एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करती रहती थी। वो बहुत शातिर और काया औरत थी। इसे जहाँ भी कोई बेआसरा या परेशान लड़की नज़र आती थी, वो उसे अपनी हमदर्दी और मोहब्बत का झांसा देकर अपने साथ झचर वाली ले आती थी। पास अज़ा वो उसे फ्रेम में रखकर आगे बढ़ा देती थी और पैसे खड़े कर लेती थी। कादू और इसी कमाश के चंद अफराद से उसकी अच्छी जान पहचान थी। वो मौके महल की मुनासबत से वरगलाकर लाई हुई लड़की को कहीं ना कहीं खपा दिया करती थी। महाजबी को यास्मीन ने कादू के हवाले किया था। कादू पहले भी इससे रुस्तम के लिए कई बार इस नौयत का मामला कर चुका था। महाजबी आंटी यास्मीन को गुजरावाला के रेलवे स्टेशन पर मिली थी। वो पहली नज़र में पहचान गई थी कि ये उसका शिकार है। वो महाजबीन के नज़दीक ही बेंच पर बैठ गई। आइंदा 10 मिनट के अंदर वो अपने प्यार भरे अंदाज में महाजबी की हकीकत से आगाह हो चुकी थी। वो महाजबी का एतमाद हासिल करने के बाद बहला फुसलाकर उसे स्टेशन से छचरवाली ले आई थी। यास्मीन का शोर सरदार हुसैन इसकी खैर नसाबी सरगर्मियों से आगा था, ताहम वो एक जन मुरीद किस्म का शोहर था। यास्मीन के सामने उसकी कोई पेश नहीं चलती थी। यास्मीन आंटी ने मुझे बताया कि महाजबी का ताल्लुक वज़ीराबाद की सब्जी मंडी के इलाके से है। मैंने यास्मीन को फरीदपुर के हालात से अच्छी तरह आगाह कर दिया था। उसे मालूम नहीं था कि वहाँ कादू और रुस्तम को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। मैंने उससे पूछा, महाजबी ने अपना घर क्यों छोड़ा था? उसके माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। उसने बताया। सौतेला बाप उस पर बुरी नीयत रखता था और गाहे बगाहे उसे तंग भी करता रहता था। महाजबी ने अपनी माँ से शिकायत की, लेकिन उसने महाजबी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। जब उसके पास कोई चारा कार ना रहा तो उसने घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम दुनिया की कमीनी तरीन औरत हो, मैंने नफरत भरे नज़र से यास्मीन की तरफ देखते हुए कहा। जिस इज्जत की हिफाजत के लिए महाजबी ने अपना घर छोड़ा था, तुमने झूठी मोहब्बत का फ़रेब देकर महाजबीन की उसी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की। वो बड़ी अदा से बोली, आप नाराज़ तो ना थानेदार साहब, मैंने आपकी बात मानकर सब कुछ सच बता दिया है। ये अदाएं और छल किसी और को दिखाना, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हारे दाम फ़रेब में आने वाला नहीं हूँ, और जहाँ तक सच उगलवाने का मामला है ना, लम्हाती तौक़ुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। तुम्हारे जैसे घिनौने किरदार की मालिक औरतों की ज़ुबान खुलवाने के लिए मैं उनके पाइंचों में चूहे छोड़कर पाइंचों का मुंह बंद भी करवा सकता हूँ। इन लम्हात में मुझे अपने गुस्से पर काफ़ी हद तक काबू नहीं रहा था।
वो मेरी कैफियत को देखते हुए बोली, थानेदार साहब गुस्सा थूक दें, जो होना था वो तो हो गया। कि लड़की इतनी मनहूस साबित हो रही है कि उसकी वजह से दो इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और मैं भी उसी के तुफैल बैठे बिठाए थाने की मुसीबत में फंस गई हूँ। तुमने सिर्फ मुसीबत का नाम सुना है आंटी यास्मीन, मैंने जहरखुंद लहजे में कहा। कभी तुम पर मुसीबत आई नहीं होगी। मैं तुम्हारा जो हशर नशर करने वाला हूँ ना, इसे तुम ताहयात याद रखोगी। आप मुझे डराए तो नहीं थानेदार साहब, वो बड़ी लगावट से बोली। जिस लड़की की वजह से आप मुझे डांट रहे हैं वो इस वक्त पता नहीं कहाँ ऐशे बाहर करती फिर रही होगी। मैं नफरत भरे अंदाज में यकटक उसे देखता चला गया। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, उसने अपनायत भरे लहजे में पूछा। मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम किस बेहया और बेगैरत मिट्टी से बनी हो। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम्हें दाव औरत कहते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। वो बड़ी गहरी नज़र से मुझे देखने लगी। उसकी दावती अदाओं ने मुझ पर कोई असर नहीं किया था। शायद वो सोच रही थी कि अब मुझ पर कौन सा दाव आजमाए। मैंने सख्त लहजे में कहा, जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन बहुत कुछ होना अभी बाकी है। जिस लड़की को तुम मनहूस कह रही हो मेरी नज़र में मसलूम है। तुम अपने काले करतूतों के सबब मेरी गिरफ्त में आई हो। मैं हर हाल में महाजबी को तलाश करूंगा ताकि दोहरे कत्ल के मामले से पर्दा उठ सके। आप ज़रूर तहकीक और तफ्तीश जारी रखिए थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से बोली। कादू और चौधरी रुस्तम के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, इसलिए मुझे तो अपने घर जाने की इजाज़त दें। तुम यहाँ से सीधी बड़े घर जाओगी आंटी यास्मीन, मैंने बेहद कड़वे अंदाज में कहा। साल 2 साल जेल में चक्की पीसोगी तो खुद ही तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और ये नहीं समझना कि कादू और चौधरी रुस्तम के कत्ल से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अगर माँ जबी नहीं मिली तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दुआ करो कि माँ जबी का जल्द से जल्द सुराख मिल जाए और ये साबित हो कि इन दोनों के कत्ल में तुम मुलविस नहीं हो। उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। पहली मरतबा मुझे सरासीमा नजर आई। उसे बाखूबी अंदाज़ा हो गया था कि मैं आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो 2 दिन तक तुम्हारे घर में रही। मैंने एक अहम सवाल किया, फिर क्या बताकर उसे तुम फरीदपुर वाले डेरे पर ले गई थी। कादू के हवाले से मैंने महाजबीन को बताया था कि वो मेरा भाई है। वो बड़े अय्यारी से बोली। वो गुजरावाले के स्टेशन पर इसलिए उतर गई थी कि उसे शक हुआ था कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। लोगों को उसने यही बताया था कि उसे जाना तो आगे था, लेकिन वो गलती से स्टेशन पर उतर गई। मगर हकीकत वही है जो मैंने आपको बताई। मैंने उसके इस वहम को इस्तेमाल किया कि वजीराबाद से कोई उसका पीछा कर रहा है। मैं एक दिन पहले ही कादू से बात पक्की कर कर आई थी। मैंने महाजबी को अपने घर से फरीदपुर वाले डेरे पर मुंतकिल करने के लिए एक चाल चली। मैंने उसे बताया कि उधर गांव में एक बंदा बड़े पुरइसरार अंदाज में किसी दराज कामत गोरी चिट्टी लड़की को तलाश करता फिर रहा है। मुझे शक है कि वही आदमी है जो ट्रेन में तुम्हारा पीछा कर रहा था। इन हालात में तुम्हारी हिफाजत की गर्ज से मुनासिब यही होगा कि मैं तुम्हें अपने भाई कादू के डेरे पर चंद दिन के लिए छुपा दूं। बाद में जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगी। और उसने फ़ौरन मेरी बात मान ली। जी बिल्कुल, वो बड़े फ़ख्र से बोली। इसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझे आंटी यास्मीन की बेहिसी पर बहुत गुस्सा आया। मैंने तल्ख लहजे में दरियाफ्त किया, तो तुम्हारे ख्याल में जब इंसान के पास कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहता तो वो मजबूर हो जाता है। थानेदार साहब, ये तो एक हकीकत है, वो गहरी संजीदगी से बोली। इस हकीकत को जहन में रखकर अपने हक में वो तमाम दुआएं करना शुरू कर दो जो तुम्हें याद हैं, मैंने बेहद शफ़ाक लहजे में कहा, क्योंकि अब तुम्हारे सामने कोई बचत का रास्ता बाकी नहीं रहा। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह एक तवील अरसे के लिए फिट करने वाला हूँ। वो दहशतज़दा अंदाज में मुझे देखने लगी। आइंदा रोज़ मैंने वज़ीराबाद का रुख किया और वहाँ जाकर मैं महाजबीन की माँ और सुतेले बाप से मिला और उन्हें हालात हाज़रा से आगाह किया। लेकिन उनमें से किसी को महाजबी की फ़िक्र नहीं थी। उसकी माँ के नज़दीक महाजबी का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। वो हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थी। उसके सुतेले बाप ने तो यहाँ तक कहा कि एक रात महाजबी ने उसे कत्ल करने की भी कोशिश की थी। अलगर्ज उन दोनों को महाजबी और उसके हालात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं वज़ीराबाद से गुजरावाला आ गया। महाजबी मंजर से गायब हो चुकी थी और मुझे हर हाल में उसकी तलाश थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और पूरे ज़िला में उसे खोजने की कोशिश में लगा रहा। चंद रोज़ के बाद मुझे पता चला कि वो जिस रोज़ आंटी यास्मीन ने महाजबी को अपने घर से फरीदपुर पहुंचाया था, उसी दिन छजरवाली से एक नौजवान गायब हो गया था। वो भी ताहाल मफकूदुल खबर था। मज़कूरा नौजवान का नाम जाहिद बताया गया। जाहिद कबड्डी का बहुत माहिर खिलाड़ी था। इस इत्तला ने मेरे रगों पे में सनसनी से दौड़ा दी। मेरी निगाह के सामने कादू की गर्दन टूटी लाश घूम कर रह गई। कादू की गर्दन का मनका जिस माहिर राना अंदाज में तोड़ा गया था, वो किसी पहलवान या कबड्डी के किसी खिलाड़ी का ही काम हो सकता था। मैंने छजरवाली के चंद दानिशमंद अफराद से मालूमात इकट्ठा करके अपने आर्टिस्ट से जाहिद का खाका तैयार करवाया और ज़्यादा शदोमस्त के साथ जाहिद और महाजबी को तलाश करने लगा।
मेरे ज़हन में इस केस की कड़ियाँ मुकम्मल हो चुकी थी। अब मुझे अपनी इस सोच की अमली ताबीर चाहिए थी। 3 माह बाद मुझे ये ताबीर मिल गई। मोहल्ले शाहीनाबाद से मैं इन दोनों की तलाश करने में कामयाब हो गया। उन्होंने शादी कर ली थी और मियाँ बीवी की हैसियत से वहाँ रह रहे थे। महाजबी की कहानी आपके इल्म में आ चुकी है। जाहिद के बारे में मुख्तसर आपको बता देता हूँ। थोड़े लिखे को ज़्यादा समझेंगे तो समझदार कहलाएंगे। जाहिद का ताल्लुक छचर वाली से था और वो आंटी यास्मीन के किरदार से अच्छी तरह वाकिफ था। महाजबी पर उसकी निगाह पड़ी तो वो दिल हार बैठा। महाजबी को उसके जज्बात की खबर नहीं थी, ताहम जाहिद ने ठान ली थी कि वो महाजबी को हर कीमत पर बचाएगा। वो गैर महसूस अंदाज में आंटी यास्मीन के पीछे फरीदपुर वाले डेरे पर पहुंच गया और स्टोर रूम में छुपकर बैठ गया। उसे रात का इंतजार था जब वो चुपके से महाजबी को लेकर उड़ता। फिर जब रात हुई और चौधरी रुस्तम की आमद के बाद डेरे पर काबिल मजम्मत खिलौने खेल का आगाज हुआ तो जाहिद फौरन हरकत में आ गया। उसने स्टोर रूम में से आईनी पाना उठाया और कादू की नज़र बचाकर रुस्तम वाले बेडरूम में घुस गया। रुस्तम को ऐसी किसी मदाखलत की तवक्का नहीं थी, फिर वह नशे में चूर भी था। जाहिद ने उसे सोचने समझने का मौका नहीं दिया और उसी के सर के अकबी हिस्से में वज्री रेंज की ज़रब लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह मंजर देखकर महाजबी ने वहशत ज़दा अंदाज में बाहर की सिम दौड़ लगा दी। बाहर कादू मौजूद था। वो महाजबी को पकड़ने के लिए दौड़ा। कादू के पीछे जाहिद ने दौड़ लगा दी। रेंज पाने को वो रुस्तम के कमरे में ही फेंक आया था। वो तीनों आगे पीछे दौड़ते हुए नहर के अंदर उतर गए। जाहिद ने जल्दी कादू तक रसाई हासिल कर ली और पलक झपकते में एक झटके से उसकी गर्दन का मनका तोड़ डाला। पहले पहल महाजबी यही समझी थी कि ये कोई वही बंदा है जो वजीराबाद से उसके ताक़ुब में है, लेकिन जब जाहिद ने उसे सूरत हाल से आगाह किया तो उसकी जान में जान आई। जाहिद के हाथों से 2 इंसान कत्ल हो चुके थे, लिहाजा वापस छज्जर वाली जाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता था। उन्होंने भाई में मशावरत के साथ एक फैसला कर लिया। इन तमाम तर हालात वाक़यात में महाजबी का कोई कसूर नहीं था। उसने किसी कदम पर एक मामूली सा जुर्म भी नहीं किया था और गिरफ्तारी के वक्त वो उम्मीद से भी थी। जाहिद की औलाद ने उसके वतन में अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दिया था। वही जाहिद जो महाजबी का अजनबी मोहसिन और 2 अफराद का कातिल था। मैंने जाहिद के लिए जिस सज़ा का इंतखाब किया वो आपको नहीं बताऊँगा। ये आपकी जहानत के लिए एक चैलेंज है। अपनी जहानत को आजमा कर खुद को सस्पेंस का ज़हीन कारीन साबित करें।